یہ کہانی یون ہو جیونگ کی ہے، جس نے سب سے پہلے ڈارک پاتھ کو متحد کیا تھا اور پھر وہ اس کا سپریم لیڈر بن گیا تھا، اور اسی طرح لائٹ پاتھ کے ساتھ مل کر 3 فرقوں کی وجہ سے پھیلے ہوئے انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یون ہو جیونگ میوریم الائنس کے لیڈر مویونگ گون کو شکست دے کر اس کا سر کاٹ دیتا ہے۔ لائٹ پاتھ کا لیڈر یون سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ مر گیا، جس پر یون بے رخی سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے کٹا ہوا سر نظر نہیں آ رہا۔ جواب میں لیڈر اسے بتاتا ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے دیکھنے سے قاصر ہے۔ وہ جیونگ کہتا ہے یہ تو افسوس کی بات ہے، پھر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیڈر پوچھتا ہے کہ کیا ایسا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ تم نے ایک اچھا کام کیا۔ لسٹ کلٹ اتنی خطرناک بن چکی تھی کہ وہ کچھ ہی سالوں میں مرکزی علاقوں کو خون میں نہلا سکتے تھے۔ آخرکار آرتھوڈاکس اور ان آرتھوڈاکس فیکشنز دونوں مل کر اس کے خلاف لڑتے ہیں، اور آج کی آخری جنگ کے ساتھ سب ختم ہو گیا۔ ہو جیونگ دل میں سوچتا ہے کہ اب اس کی زندگی جلد ہی ختم ہونے والی ہے، کیونکہ اس کے پیٹ سے مسلسل خون بہ رہا تھا۔ لائٹ پاتھ کا لیڈر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے۔ ہو جیونگ اپنا زخم تھامتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کسی حد تک سنبھال رہا ہے۔ لیڈر کہتا ہے کہ ان آرتھوڈاکس کے سپریم لیڈر سے یہی امید کی جا سکتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر ہو جیونگ تم نہ ہوتے تو ان آرتھوڈاکس فیکشن 10 سال پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا۔ ہو جیونگ کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے، اگر وہ لیڈر نہ ہوتے تو آرتھوڈاکس فیکشن مرکزی علاقے سے مٹ چکا ہوتا۔ لیڈر ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ ہو جیونگ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور تسلیم کرتا ہے کہ وہ واقعی بلیک ایمپرر ہے۔ اس کے بعد ہو جیونگ سے کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک سوال ہے۔ جیونگ جب حیران ہو کر پوچھتا ہے تو لیڈر بتاتا ہے کہ جیونگ کو آرتھوڈاکس فیکشن کے سب سے عظیم خاندانوں میں سے ایک نے اپنا جانشین چنا ہے، اس لیے وہ پوچھتا ہے کہ جیونگ ان آرتھوڈاکس فیکشن کا لیڈر کیسے بنا۔ ہو جیونگ جواب دیتا ہے کہ بس ایسے ہی ہو گیا۔ لیڈر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ جواب بھی تمہارے جیسا ہی ہے۔ ہو جیونگ لیڈر سے پوچھتا ہے اس نے یہ سوال کیوں کیا، جس پر لیڈر کہتا ہے وہ مرنے سے پہلے ایک بار یہ جاننا چاہتا تھا۔ ہو جیونگ کہتا ہے کہ اسے ختم کرو، یہ بہت بورنگ ہے۔ لیڈر اس سے پوچھتا ہے کہ وہ مزید کتنی دیر اور جی سکے گا۔ ہو جیونگ کہتا ہے 8 منٹ سے کم، لیکن وہ اسے آخر تک رخصت کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ لیڈر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اسے دل میں کوئی بات نہ رکھنے کا کہتا ہے۔ اسی لمحے ہو جیونگ کو نظر آتا ہے اس کا دشمن ٹینگ کون اپنے ہاتھ میں کاؤ ہیئر نیڈل لے کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، ٹانگ سوئی اس کے سینے میں مار دیتا ہے۔ وہ درد سے جھک جاتا ہے اور اسے بس خیال آتا ہے کہ یہ زندہ کیسے بچ گیا۔ جیسے ہی ہو جیونگ درد سے لائٹ پاتھ کے لیڈر کے سامنے جھکتا ہے تو لیڈر کہتا ہے میں تم سے سمجھنے کی امید رکھتا بھی نہیں، لیکن یہ بتاؤ اگر وہ نہ رہا تو ہو جیونگ کو کون روکے گا۔ پھر وہ معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اگلی زندگی میں اس کا کفارہ ادا کر دے گا۔ وہ اپنے آخری الفاظ کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ اس سے پہلے مر جائے گا اور پھر وہ اگلے جہان میں ملیں گے۔ درد میں مبتلا ہو جیونگ سوچتا ہے کہ شاید وہ ویسے بھی مر جاتا۔ آخری وقت تک وہ سوال کرتا ہے کہ آخر کیوں اس کے نصیب میں ایسا انجام لکھا گیا۔ پھر اس کا ذہن 26 سال پیچھے چلا جاتا ہے، جس دن گرین ماؤنٹین کلین ختم ہوا تھا۔ اسے یاد آتا ہے کہ کیسے اس کا باپ ایک برے آدمی سے لڑتے ہوئے مارا گیا تھا، اور کیسے اس کا چھوٹا بھائی بھی جلد ہی مر گیا تھا، اور کیسے اس کا قبیلہ تباہ ہو گیا تھا اور وہ مرکزی علاقے میں رہ گیا تھا جہاں کھلے آسمان تلے اس کا کوئی نہ تھا۔ پھر وہ آرتھوڈاکس فیکشن میں شامل ہوا اور مسلسل محنت کر کے اس کا لیڈر بن گیا۔ وہ بس جینے کے لیے لڑتا رہا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ آگے بڑھنے کے لیے بس یہی راستہ ہے، لیکن اب زندگی کے آخری لمحات میں اسے لگتا ہے یہ سب بے فائدہ تھا۔ مرنے پر بھی اسے کچھ نہ ملا، بس تکلیف اور دھوکہ۔ میوریم الائنس لیڈر کی سازشوں میں پھنس کر اس کی زندگی اچانک سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو یون قبیلے میں پاتا ہے، ایک باوقار مگر تباہ ہو چکا قبیلہ جو کہ اس کی یادوں سے کبھی نہیں مٹ سکا۔ ہائی پریسٹ کو دیکھنے کے بعد ہو جیونگ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ منظر کچھ جانا پہچانا ہے۔ اس کے ارد گرد کے لوگ سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بے یقینی کے عالم میں وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا یہ خواب ہے یا کوئی دھوکہ۔ وہ جھجکتے ہوئے اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوتا ہے۔ نوجوان اس کا بھائی لیپیونگ دھیمے لہجے میں بولتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ آباء و اجداد کی رسومات ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ ہو جیونگ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور اسے بیٹھنے کا کہتا ہے کیونکہ اس کے والد دیکھ رہے ہیں۔ اپنے چھوٹے بھائی کو سامنے دیکھ کر ہو جیونگ خوشی کے مارے اسے گلے لگا لیتا ہے۔ جب ہو جیونگ اسے تھامے ہوتا ہے تب اسے اچانک احساس ہوتا ہے کہ یہ اس کا بھائی ہے جو 20 سال پہلے سے بھی زیادہ پہلے مر چکا تھا اور اب کس طرح اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اچانک سے ہو جیونگ کو کوئی پکارتا ہے اور وہ پکار سن کر فوراً اس آواز کو پہچان لیتا ہے۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو چونک جاتا ہے کہ اس کا والد اسے پکار رہا ہے۔
खुशी के मारे वो दौड़कर अपने वालिद की तरफ जाता है। इससे पहले कि उस तक पहुंचता, वो उससे पहले उसका बाजू पकड़कर रोक लेता है। हुजियोंग अपने वालिद के सामने झुक जाता है और उसकी डांट सुनता है, जो कि उससे रसूमात पे हंगामा करने पर डांट रहा था, और वो उससे पूछता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। उसका वालिद कहता है कि वो इस बारे में इससे बाद में पूछेगा, लेकिन वो सजा के तौर पर उसे 3 दिन में आबाई घर में आबा-ओ-अजदाद के सामने माफी मांगने का हुक्म देता है, जिस पर हुजियोंग बगैर किसी हिचकिचाहट के मान जाता है। जब वो सब कुछ समझने की कोशिश करता है तो सोचता है कि क्या वाकई वो जिंदा है। फिर वो अपने हाथों को देखता है, उसके जख्म, छाले और हत्ता के सुई के निशानात भी गायब हो चुके हैं। तब उसे हकीकत का एहसास होता है कि उसका माजी है, वो जिंदगी जिसकी उसने हमेशा तमन्ना रही, वो ग्रीन माउंटेन यून कबीले में वापस लौट आया है। जब वो आबाई घर में दाखिल होता है तो उसका दरवाजा बंद करके सोचता है कि उसका वालिद आज भी वैसा ही सख्त है जैसा पहले था। 3 दिन की तौबा का हुक्म उसके जहन में गूंजता है और वो सोचता है कि आखिर वो यहाँ वापस क्यों आया है। वो जानता है कि ऐसी नाकाबिल फहम चीज को आसानी से कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मुस्तकबिल में मसाइल पैदा कर सकती है। फिर वो गहरी सांस लेते हुए लेट जाता है और थोड़ा आराम करने का फैसला करता है, क्योंकि सिर्फ सोचते रहने से उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। मगर अचानक उसे एक ख्याल आता है और वो तेजी से उठकर बैठ जाता है और सोचता है कि उस वक्त उसकी उम्र क्या है, 18 या 19 साल। मौसम को देखते हुए अंदाजा लगाता है कि खिज़ां है। अपने वालिद और जीपियों की शक्लें देखकर वो अंदाजा लगाता है कि ये लम्हा 26 साल पहले का है। ये सोचकर कि आगे क्या होने वाला है, वो फर्श पर मुक्का मारता है। अगर उसका अंदाजा दुरुस्त है तो ग्रीन माउंटेन यून कबीला 1.5 साल से भी कम वक्त में तबाह हो जाएगा। खतरे की शिद्दत उसे घेर लेती है और बगैर किसी ताकीर के वो बाहर की तरफ दौड़ता है और इस बात का अज़म कर लेता है कि अब आराम का वक्त नहीं है। जैसे ही हुजियोंग दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि जीपियोंग दरवाजे के बाहर खड़ा है। जीपियोंग उसे देखकर पूछता है कि क्या वो कहीं जा रहा है और अपने भाई को याद दिलाता है कि उसे 3 दिन अंदर रहने का हुक्म दिया गया है। हुजियोंग इस बात को मान लेता है और जीपियोंग से उसके यहाँ आने की वजह पूछता है। जीपियोंग उसे कुछ खाने को देता है और कहता है कि मुझे मालूम है ये सजा है, लेकिन तुम पिछले 3 दिन से सिर्फ पानी पी रहे हो, इसीलिए फिक्र हो रही थी। उसे जल्दी से खाने को कहता है कि उससे पहले वालिद को पता ना लग जाए। माजी और मुस्तकबिल का बोझ हुजियोंग के दिल पर छा जाता है। सिर्फ 1.5 साल में जीपियोंग मर जाएगा और उसका वालिद, जो कबीले का सरदार है, एक जालिम के हाथों बाकी कबीले के साथ कत्ल हो जाएगा। ये सोचकर वो अपने भाई को गले लगा लेता है और कसम खाता है कि जालिम आखिर में नहीं जीतेगा। अब की बार वो पहला वार करेगा, वो पूरी तैयारी करेगा, किस्मत का रास्ता बदल देगा और ये बुरा सानिया कभी नहीं होने देगा। पुरअज़म होकर वो खुद से वादा करता है कि वो उन सबको खत्म कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हुजियोंग आबाई घर छोड़कर पैट्रियार्क रेजिडेंस की तरफ जाता है। जब वो दरवाजे पर पहुंचता है, दरबान सर झुका के उसे खुशामदीद कहता है और उससे आने की वजह पूछता है। हुजियोंग कहता है कि वो अपने वालिद से मिलना चाहता है। दरबान संगवी पूछता है कि क्या पैट्रियार्क ने उसे बुलाया है। जब हुजियोंग कहता है कि नहीं बुलाया, संगवी कहता है कि वो अंदर नहीं जा सकता। हुजियोंग जिद करता है कि उसे जल्दी है, मगर दरबान अपनी बात पर कायम रहता है और कहता है कि उन्हें सख्ती से हुक्म दिया गया, इस वक्त किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हुजियोंग उससे इस सख्त हुक्म की वजह पूछता है, मगर सांगवी सिर्फ माफी मांगता है और कहता है कि हुजियोंग किसी और दिन आ जाए। इस पर हुजियोंग अपने वालिद को एक पैगाम भेजने को कहता है। सांगवी मान जाता है और पूछता है कि क्या कहना है। हुजियोंग कहता है कि वालिद से कहना कि वो ट्रू अज्यूर स्किल टेक्निक को पहले ही सीख लेगा। सांगवी हैरत से इस नाम को दोबारा बोलता है और पूछता है कि क्या उसने सही सुना है। हुजियोंग बिना रुके इस बात की तस्दीक करता है और वहां से चला जाता है। दरबान हैरान रह जाता है। सांगवी हैरत का इजहार करता है कि ट्रू अज्यूर स्किल टेक्निक यून क्लैन की 5 अजीम मार्शल आर्ट्स में से एक है। वो हैरान होता है कि क्या यंग मास्टर सच में इसे सीखना चाहता है और खुद से सवाल करता है कि क्या इसका ये मतलब कि हुजियोंग ने पहले से फ्लाइंग स्वेलो मेथड सीख लिया है, जो कि जरूरी तरीका है। उसी वक्त जीपियोंग आता है और कहता है कि ये नामुमकिन है कि यंग मास्टर ये सब कर सके, मगर सेकंड यंग मास्टर होता तो शायद मुमकिन होता। माजी में हुजियोंग को जीपियोंग से नफरत थी, क्योंकि जीपियोंग बहुत जबरदस्त सलाहियत रखता था और पैट्रियार्क अक्सर सिर्फ उसके बारे में बात करते थे। इस वजह से हुजियोंग ने अपने छोटे भाई की मौजूदगी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जैसे कि वो है ही नहीं। जीपियोंग अपने भाई के लिए फिक्रमंद था और कहता है कि किसी को भूखे मारना सजा देने का सही तरीका नहीं है। वो पूछता है कि कोई किसी से लड़ाई कैसे कर सकता है जब उसने सिर्फ पानी पी रखा हो। वो हुजियोंग से पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है और उसे खाना लाने का पूछता है। फिर कहता है कि उसने एक अच्छा होटल ढूंढा है जो उसको पसंद आएगा। उस जगह का नाम ओल्ड सनी किचन है। इसके जवाब में हुजियोंग दिल से अपने भाई से माफी मांगता है अपने गुजरे हुए रवैये के लिए।
वो इस बात को तस्लीम करता है कि वो अच्छा भाई नहीं था और ना ही वो अपने भाई की ग्रोथ में उसकी मदद कर पाया। उसे अपने बचकाना रवैये और बिला वजह के गरूर पर अफसोस होता है और वो अपना पछतावा जाहिर करता है और कहता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। जिपियोंग इस बात पर हैरान होता है और अपने भाई में इस तब्दीली की वजह के बारे में सोचता है। हुजियोंग दिल से माफी मांगता है और अपनी पहुंचाई गई तकलीफ का एतराफ करते हुए कहता है कि अगर जिपियोंग उसे माफ ना भी कर सके तो भी वो चाहता है कि वो कम अज कम दोनों माजी को पीछे छोड़ दें। वो जज्बाती होकर रोने लग जाता है। हुजियोंग उसे तसल्ली देता है और गार्ड्स भी इस गैर मामूली मंजर को देखकर हैरान होते हैं कि हुजियोंग ने अचानक नरमी का मुजाहिरा कैसे किया। बाद में ओल्ड सनी किचन में खाना खाते वक्त जिपियोंग अपने भाई को घूर कर देखता है और पूछता है क्या उसकी फ्लाइंग स्वेलो की बेहतर हो गई है। हुजियोंग हैरान होता है और पूछता है कि क्या जिपियोंग ये बता सकता है। जिपियोंग सर हिला के कहता है उसने महसूस किया है कि उसके चलने का तरीका मुख्तलिफ था जो आम तौर पर उससे अलग होता है। उसने निशानदही की कि की उसके जिस्म से जरा आगे थी जो एक बेहतरी का इशारा है। इन पिछले 3 दिनों में जो कि उसने अपने आबाई घर में गुजारे, हुजियोंग उसे याद करते हुए सोचता है उसने छुपकर फ्लाइंग स्वेलो मेथड की प्रैक्टिस की थी। ये एक खतरनाक काम था जिसमें जान का खतरा भी था। उसकी वजह से उसके जिस्म के हालात भी बिगड़ गए थे। उसके खून की रगें, मेरिडियंस, डेंटियन और हत्ता के हड्डियां भी मुतासिर हुई। वजह साफ थी, उसे अपनी इन्नेट की को उसके जिस्म से निकालना पड़ा जो एक ऐसा अमल था जो उसकी हदूद से बढ़कर था। जिपियोंग फ्लाइंग स्वेलो मेथड को हासिल करने की मुश्किलात को मद्देनजर रखता है और अंदाजा लगाता है कि उसके भाई की टेक्निक 7 स्टार पर होनी चाहिए। वो तजस्सुस से पूछता है कि क्या उसका अंदाजा सही है। हुजियोंग इस बात की तस्दीक करता है कि उसने वाकई फ्लाइंग स्वेलो मेथड में महारत हासिल कर ली है। पुरजोश होकर जिपियोंग अचानक खड़ा होता है और अपने भाई को मुबारकबाद देता है। इसी दौरान हुजियोंग सोचता है कि उसकी इन्नेट की कैसे तब्दील हुई है जिससे उसके चलने के अंदाज में फर्क आया है, लेकिन इसके बावजूद कितना ही छोटा फर्क क्यों ना हो, जिपियोंग ने इसे सिर्फ अपनी आंखों से पहचान लिया जैसा कि उम्मीद थी। उसका छोटा भाई वाकई गैर मामूली मुशाहिदा रखता है। उसी वक्त जिपियोंग एक जानी पहचानी की को महसूस करता है और नोट करता है कि कोई दोस्त आया है। चुपके से अपनी ड्रिंक पीते हुए हुजियोंग सूरत हाल का जायजा लेता है और पहचानता है कि 3 लोग आ रहे हैं जिनमें से एक काफी ऊंचा मकाम रखता है। मिलने के लिए बेचैन जिपियोंग फौरन दौड़ता है, लेकिन अपनी जल्दबाजी में वो नामगुंग संगवा नामगुंग क्लैन की जवान लेडी से टकरा जाता है। वो फौरन अपनी गलती पर माफी मांगता है और कहता है कि उसका इरादा ये नहीं था। वो गुस्से में उसे नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसका दोस्त जुंगक आगे बढ़कर उसे रोक लेता है और सवाल करता है कि क्या नामगुंग क्लैन की जवान लेडी के साथ ऐसे बर्ताव को यूं ही नजरअंदाज कर देना चाहिए। वो संजीदगी से जवाब देता है कि ये ज्यादा अहमियत की बात नहीं है। इस दौरान जिपियोंग का दोस्त पहुंच जाता है और उसे गर्म जोशाना अंदाज में मिलता है। यांगवू जिपियोंग को तजस्सुस के साथ देखता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, फिर उसे उनके साथ बैठने को कहता है। जिपियोंग मना कर देता है, समझाता है कि वो अपने भाई से बात कर रहा है। यांगवू हैरानी से पूछता है कि उसका भाई कहाँ है। सांगवा के पीछे जुंगक दोनों परेशान और मुतजस्सिस लगता है। सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश में वो हकलाता है और कहता है अगर वो यहाँ की मछली की डिशेस का मजा चखेगा तो सबका मूड बेहतर हो जाएगा। जुंगक के आगे बोलने से पहले जिपियोंग उसे टोकता है और उसका नाम लेता है। कहता है कि वो उसे अपने बड़े भाई से मिलवाना चाहता है। हैरानी के साथ जुंगक पूछता है कि क्या जिपियोंग का भाई वाकई यहाँ है। इसी लम्हे हुजियोंग आगे बढ़कर सबसे सलाम करता है और अपना तारुफ करवाता है। जुंगक खुद को संभालते हुए जरा झुकता है और अपना तारुफ कराता है। कहता है कि वो अनहुई ली खानदान से ली जुंगक है। इसी दौरान गुस्से में भरी शंगवा जुंगक की तरफ मुड़कर सवाल करती है कि क्या वो उसे सिर्फ इस तमाशे के लिए लाया था। जुंगक फौरन इनकार करता है और कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। बात का रुख मोड़ते हुए वो यांगवू को कहता है कि जल्दी से कुछ खाना ऑर्डर करे। इस पर यांगवू सर हिलाकर बात मान लेता है। जैसे ही डिश सांगवा के सामने रखी जाती है तो उसका चेहरा बिगड़ जाता है और वो गुस्से से चिल्लाती है, पूछती है कि क्या इसे वो अपनी खास डिश कह रहा था। इस दौरान जिपियोंग अपने भाई के सामने बैठा थोड़ा शर्मिंदा नजर आता है। अपनी नजर झुकाते हुए वो अपने भाई से माफी मांगता है और कहता है कि उसे हुजियोंग को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन हुजियोंग मुस्कुराकर इस बात को टाल देता है। कहता है कि क्योंकि जिपियोंग अपनी कामयाबी मना रहा है, उसे चाहिए कि वो इस खुशी में अपने भाई को एक जाम पिलाए। जिसे सुन के जिपियोंग खुशी से चमक उठता है और फौरन मान जाता है और अपने भाई से कहता है जितनी चाहिए उतनी ड्रिंक्स मंगवा ले। इसी वक्त सांगवा की आवाज बुलंद हो जाती है और वो जुंगक पर चीखना शुरू कर देती है और उससे पूछती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसे नसीहत करे। जुंगक नरमी से बात संभालने की कोशिश करता है। वो सांगवा को पुरसकून करने की कोशिश करता है और कहता है कि सब लोग देख रहे हैं। सांगवा ये सुनकर हंसी और मजाक उड़ाते हुए पूछती है लोग।
तुम्हारा मतलब है ये कीड़े? वो जिपियोंग और जियोंग की तरफ इशारा करती है। जुंगक अपने आप को संभालते हुए कहता है कि वो ऐसी बेमतलब बातें ना करे और उसे याद दिलाता है कि ग्रीन माउंटेन यूएन क्लैन भी 7 ग्रेट क्लैंस का उसी तरह हिस्सा है जैसे कि वो। लेकिन सांगवा तंजन हंसकर कहती है कि क्या वाकई यूएन क्लैन इतना इज्जतदार है? फिर वो पूछती है कि नामगुंग क्लैन ने कब यूएन क्लैन को 7 ग्रेट क्लैन में तस्लीम किया। फिर वो बेपरवाही से बोलती है कि जुंगक जितना मर्जी बोलता रहे, उसे तो बस उसके बनाए हुए जाल से दूर रहकर सुकून से रहना है। ये सब देखकर हुजियोंग आ भरता है और दिल में सोचता है कि ये सब मंजर ड्रिंक की महफिल का मजा खराब कर रहा है। फिर आखिरकार जिपियोंग तंग आकर अपनी जगह से खड़ा होता है और सांगवा का सीधा सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। जिपियोंग गुस्से में सांगवा पर चीखता है कि वो हद से ज्यादा बढ़ रही है। सांगवा हैरानी से पूछती है इस बात से उसका क्या मतलब है। जिपियोंग पूछता है नामगुंग क्लैन में लोगों को गाली देना और जलील करना उनकी रसूमात है। ये सुनकर सांगवा हंसने लगती है और मजाक उड़ाते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है तुम कोई खास हो इसलिए कि लोग तुम्हारे क्लैन को 7 ग्रेट क्लैन में से एक समझकर उसकी तारीफ करते हैं? जिस पर जिपियोंग उसे जवाब देता है अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है उसकी सही तरबियत नहीं हुई। सांगवा को उसकी ये बात बुरी लगती है। वो गुस्से में टेबल पर मुक्का मारती है और टेबल को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। फिर वो कहती है शायद उसे जिपियोंग को काट के देखना पड़ेगा कि उसमें हिम्मत है भी या नहीं। हुजियोंग ये सब देख रहा होता है। वो जिपियोंग से कहता है आइंदा ऐसे लोगों पर वक्त जाया मत करना, मारने के बाद सुधारने में देर नहीं होती। सांगवा को उसकी ये बात बुरी लगती है। वो जुंगक की तरफ इशारा करती है और हुजियोंग और जिपियोंग को उसके सामने घुटनों पे लाने का हुक्म देती है। जुंगक हिचकिचाता है और हुक्म सुनकर परेशान हो जाता है। फिर सांगवा उसे थप्पड़ मारती है और धमकी देती है अगर उसने बात ना मानी वो उसके खानदान को अनहुई टेरिटरी में रहने नहीं देगी। दबाव में आकर जुंगक हुजियोंग के पास जाता है और उसे घुटनों पर बैठने का कहता है, लेकिन हुजियोंग उसका सर पकड़कर नीचे मारता है और उसके पेट में जोर का मुक्का मारता है जिससे उससे उल्टी हो जाती है। इसी वक्त सांगवा हुजियोंग पर अपनी स्काई टेक्निक से हमला करती है। उसका बेवकूफाना हमला देखकर वो हैरान होता है और दिल में सोचता है ये जरूर पागल है जो हेवनली विंड पाम खाली हाथों से कर रही है। फिर वो उम्मीद करता है इस अमल में कम से कम उसका कंधा या बाजू टूट जाएगी। जैसे ही वो हमले के लिए करीब आती है हुजियोंग उसका बाजू कोहनी से पकड़कर जोर से तोड़ देता है। सांगवा दर्द से चीख उठती है और हैरानी से कहती है उसकी क्लियर स्काई की टेक्निक कैसे खत्म हो गई। जवाब देने के बजाय हुजियोंग उसकी टांग पर वार करता है और हड्डी तोड़ देता है। वो फिर से चीखती है। हुजियोंग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसे धक्का दिया गया या चाकू मारा गया। अगर उसे चोट लगती है तो वो बदला जरूर लेता है। यही ब्लैक एम्परर का असूल है। अब सांगवा डर जाती है और चीख कर उसे आगे आने से मना करती है। फिर वो उसे धमकी देती है कि उसका क्लैन महफूज नहीं रहेगा। वो कसम खाती है कि वो ग्रीन माउंटेन यूएन क्लैन को मिटा देगी। हुजियोंग उसके करीब जाता है और पूछता है कि वो ये सब कैसे करेगी। सांगवा घबरा जाती है और पूछती है कि इस बात से उसका क्या मतलब है। वो अपना सवाल दोबारा पूछता है कि वो उसे और उसके क्लैन को कैसे खत्म करेगी। जिपियोंग जो कि सब कुछ देख रहा होता है अपने भाई के लिए और ज्यादा परेशान हो जाता है। सांगवा गुस्से में कहती है उसे तकलीफ देने पर नामगुंग क्लैन उसका जवाब देगा और उससे बदला लेगा और उसे इस बात पर पछतावा होगा। ये सुनकर हुजियोंग बिना डरी कुर्सी तोड़ता है और उसका नोकीला टुकड़ा उठाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वो पुरसकून अंदाज में कहता है अब तो उसे मारकर दफनाने की और भी वजह मिल गई है ताकि नामगुंग क्लैन को कभी कुछ पता ही न चले। डरी हुई सांगवा जोर से चीख मारकर मदद के लिए पुकारती है। अगले दिन पैट्रियार्क की रिहाइशगाह में हुजियोंग का वालिद उनसे लड़ाई के बारे में पूछता है। वो अपने बेटे की तरफ देखते हुए उससे वजाहत मांगता है। हुजियोंग जवाब देता है कि ये लड़ाई दोनों तरफ के तनाजे की वजह से हुई थी। उसके जवाब से गैर मुतमिन होकर उसका वालिद से मजीद सवाल करता है। कहवा थामे वो बताता है कि ली क्लैन के बेटे का चेहरा बर्बाद हो गया है जबकि नामगुंग क्लैन की बेटी को बहुत सीरियस चोट लगी है। उसका हाथ और टांग दोनों टूटी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके एक्सटर्नल और इंटरनल जख्म इतने सीरियस हैं कि कम से कम आधा साल रिकवरी में लगेगा। हुजियोंग सुकून से जवाब देता है कि वो लोग जान लेने के इरादे से आए थे और वो चाहते थे कि वो और जिपियोंग जमीन पर झुककर माफी मांगे। लेकिन उसका वालिद सख्त लहजे में पूछता है कि क्या वो बस वहाँ से निकल नहीं सकते थे। वो हुजियोंग को इसके नताइज के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या उसे वाकई में ये समझ नहीं आई कि 2 बड़े क्लैंस के बच्चों का आपस में खून खराबा करना कितना बड़ा मसला बन सकता है। इस बात का जवाब देने के बजाय हुजियोंग पूछता है कि क्या उनका क्लैन वाकई 7 ग्रेट क्लैंस में शामिल होता है। उसके वालिद अचानक इस सवाल पर हैरान होता है और पूछता है कि उसका क्या मतलब है, जिस पर वो बताता है कि नामगुंग क्लैन की बेटी उनके क्लैन को 7 ग्रेट क्लैंस का हिस्सा नहीं समझती। ये बात सुनकर उसका वालिद हैरान हो जाता है।
जब हुजियोंग पैट्रियार्क की रिहाइश गाह से निकलता है तो वो सारे हालात पर गौर करता है और सोचता है कि चाहे उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इतनी सख्ती से पेश आना ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ है। ऑर्थोडॉक्स पाथ युआन क्लैन की वैल्यूज और उसके वालिद की मर्जी की नुमाइंदगी करता है। वो खुद से कहता है कि शायद वो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का आदी हो चुका है क्योंकि उसने 30 साल ब्लैक एम्परर के तौर पर जिंदगी गुजारी है। फिर एक और ख्याल उसके जहन में आता है और वो सोचता है कि ट्रू आजूर स्किल टेक्निक का क्या करे। उसे एहसास होता है कि अगर वो इस वक्त अपने वालिद से पूछेगा तो वो नाराज हो जाएंगे। इधर नामगुक क्लैन में डॉक्टर सांगवा की टूटी हुई हड्डी को पट्टी करता है, जबकि पैट्रियार्क नमगुंग पास खड़े उसकी हालत के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर बताता है कि उसके जख्म इतने सीरियस नहीं जितना पहले सोचा गया था, लेकिन असल मसला उसके दिल के जख्म का है। वो बताता है कि उसे किसी चीज का गहरा सदमा हुआ है और चाहे उसका जिस्म आधे साल में ठीक हो जाए, लेकिन वो उसकी ज़हनी हालत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। इसी वक्त नामगुक क्लैन का दूसरा बेटा हुयून अपने वालिद की तरफ मुड़ता है और उससे उनकी राय के बारे में पूछता है कि वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। नामगुक कहता है कि सांगवा की चोटें काफी शदीद हैं, हालांकि उन्होंने उसे सिर्फ दुनिया सीखने भेजा था। हुयून कहता है कि सांगवा ने शायद इस वाक़े से कुछ सीख लिया हो और इस तजुर्बे से शायद उसे जिंदगी की कीमत का एहसास हुआ हो, और वो सोचता है कि किसी गुंडे को माफ करने की कोई वजह नहीं। नामगुक उसे बताता है कि इस वाक़े का जिम्मेदार शख्स युआन क्लैन से है। हुयून इस क्लैन को सिर्फ 50 साल पुराना कहकर डिसमिस कर देता है और गुस्सा दिखाता है कि उन्होंने नामगुंग क्लैन को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे की। फिर वो पूछता है कि क्या वालिद उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। नामगुक कहते हैं कि एक बच्चे की चोट की वजह से उसका किसी बड़ी लड़ाई में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। हुयून इस बात को मानता है कि एक फैमिली के हेड को ऐसे मामलात में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन फिर नामगुक इन पूछते हैं कि जिम्मेदार शख्स का क्या करना चाहिए। तो हुयून जवाब देता है कि उस शख्स को ठीक तरह से सबक देना चाहिए क्योंकि गलती सिर्फ उसी की है, इसीलिए नामगुक क्लैन को जल्दी करने की जरूरत नहीं। फिर वो पूछता है कि इस साल गैदरिंग ऑफ सक्सेसर कब होगी। दूसरी तरफ रात के वक्त पैट्रियार्क युआन जीपियोंग को गैदरिंग ऑफ सक्सेसर के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि एक फेस्टिवल है जहां 7 ग्रेट क्लैंस के नेक्स्ट जनरेशन डिसाइपल्स मिलते हैं ताकि उनके दरमियान रिश्ते और बेहतर बनाए जा सके। जीपियोंग को एक एंट्रेंस परमिट देते हुए वो कहते हैं कि उसे 15 तारीख से पहले अनहोई पहुंचना होगा और वो ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड को उसके साथ एस्कॉर्ट के तौर पर भेजेंगे। जीपियोंग हैरानी से पूछता है कि क्या वो ही जा रहा है और क्या ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड जो कि ग्रीन माउंटेन युआन क्लैन का लाइट मार्शल आर्ट्स ग्रुप है उसको साथ ले जाने की जरूरत है। उस पर उसका वालिद पूछता है कि क्या कोई मसला है। जीपियोंग थोड़ा रुककर कहता है कि ऐसे फेस्टिवल के लिए उसके बड़े भाई का जाना ज्यादा मुनासिब है। थोड़ी देर खामोशी के बाद पैट्रियार्क युआन कहते हैं कि हुजियोन अब खतरनाक हो गया है। जीपियोंग हैरानगी से इस बात की वजाहत मांगता है, इस पर उसका वालिद कहता है कि हुजियोंग कुछ वक्त से बदल सा गया है, जैसे वो अब वही शख्स ना रहा हो। इधर जंगल में हुजियोंग एक लोहे के रॉड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, अपनी स्किल्स और टेक्निक्स की प्रैक्टिस करता है, लेकिन जब वो अपने हाथ पर चोट देखता है तो वो तस्लीम कर लेता है कि उसकी ताकत कम हो गई है। वो खुद से बोलता है कि सिर्फ 12 किलोग्राम का आयरन रोड उठाने में मुश्किल हो रही है तो एक्स इस्तेमाल करना तो नामुमकिन है। मायूसी से वो सोचता है कि इस स्पीड से उसको अपनी पुरानी ताकत दोबारा हासिल करने के लिए कई वक्त लग जाएगा। जब वो आयरन रोड को कंधे पर रख कर जाने लगता है तो उसका वालिद वहाँ आ जाता है। पैट्रियार्क युआन पूछता है कि क्या वो ट्रेनिंग कर रहा था, जिस पर हुजियोंग जवाब में पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। उसका वालिद देखता है कि हुजियोंग रात में भी ट्रेनिंग कर रहा है। हुजियोंग बताता है कि वो स्पीयर और स्टाफ सही तरीके से सीखना चाहता है। उसका वालिद हैरानगी से उससे पूछता है कि जब उसे तलवारबाजी सीखनी चाहिए तो वो स्पीयर्स और स्ट्रैप्स पर क्यों फोकस कर रहा है। वो हुजियोंग को याद दिलाता है कि युआन क्लैन की ग्रेट टेक्निक स्वॉर्ड्समैनशिप पर मबनी है और बड़े बेटे होने के नाते उसके लिए यही रास्ता मुनासिब है। लेकिन हुजियोंग इस बात से इनकार करता है और कहता है कि अगर वो तलवार ठीक से चला ही नहीं सकता तो उसे जबरदस्ती सीखने का क्या फायदा। अपने वालिद को हैरान देखकर वो समझाता है कि मार्शल पाथ एक ऐसी चीज है जो जिस्म से समझी जाती है और अगर उसे कोई अंदाज सूट करता है तो उसे फिर उसी पर चलना चाहिए। उसका वालिद उसकी बात पर गौर करता है, फिर वापस जाने लगता है, लेकिन फिर रुककर उसे बताता है कि गेटकीपर सांगवी ने कहा था कि हुजियोंग ट्रू आजूर स्किल टेक्निक सीखना चाहता है। हुजियोंग इस बात की तस्दीक करता है। उसका वालिद बताता है कि ट्रू आजूर स्किल टेक्निक क्लैन की 5 ग्रेट डिवाइन आर्ट्स में से एक है जो सिर्फ पैट्रियार्क की इजाजत से सीखी जा सकती हैं। इजाजत देने से पहले वो उससे एक सवाल पूछना चाहते हैं और उसका जवाब ही फैसला करेगा कि वो टेक्निक सीखने का हकदार है या नहीं। पैट्रियार्क युआन हुजियोंग से पूछता है कि क्या वो ट्रू आजूर स्किल टेक्निक के फॉर्म्स के बारे में जानता है। वो इशारा करता है। हुजियोंग ने गेटकीपर सांगवी को पहले ही बता दिया था कि वो ये टेक्निक याद करेगा, जिसका मतलब है कि वो इसे पहले से जानता है।
हुजियोंग बिला झिझक इस बात की तस्दीक करता है और कहता है कि ना सिर्फ उसे ट्रू आज़ूर स्किल टेक्निक आती है बल्कि उसे 5 ग्रेट डिवाइन आर्ट्स के तमाम फॉर्म्स भी मालूम हैं। उसके वालिद हैरान रह जाते हैं और उसकी कही हुई बात को दोबारा दोहराते हैं। हुजियोंग फिर से इस बात की तस्दीक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि उसके वालिद ने ही उसे सब कुछ सिखाया था। वो सब कुछ बताना चाहता था अपने गुजरे हुए वक्त का और आने वाले वक्त का, मगर अपने हाथ में आयरन रोड को मजबूती से पकड़कर वो खुद को समझाता है कि ये वक्त सही नहीं है। वो अपने वालिद को याद दिलाता है कि बचपन में उसे मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी ले जाया गया था। पैट्रियार्क योन शक में पूछता है कि उसे वाकई अभी तक वो फॉर्म याद है, जिस पर हुजियोंग सिर्फ हाँ में जवाब देता है। अपने बेटे को गौर से देखते हुए पैट्रियार्क योन सोचता है कि शायद वो झूठ बोल रहा है, मगर उसकी आंखों में झूठ का कोई निशान नहीं था। वो वाकई सच कह रहा था। फिर भी वो पूछता है कि उसे इतनी जल्दी क्यों है, क्या कोई वजह है जो वो नहीं जानता। थोड़ी देर के लिए खामोशी होती है, फिर वो कहता है कि हुजियोंग अगली सुबह उसकी स्टडी में आए, उसकी मदद करेगा फ्लाइंग स्वेलो की को ट्रू आज़ूर स्किल की में तब्दील करने में। अगली सुबह हुजियोंग अपने वालिद की स्टडी में होता है और देखता है कि वो फ्लाइंग स्वेलो स्किल्स को ट्रू आज़ूर स्किल्स में तब्दील कर रहे हैं। उसके वालिद सोच रहे होते हैं कि आधा महीना काफी होगा, क्योंकि उसे खुद भी इतना ही वक्त लगा था। लेकिन प्रोसेस के दौरान हुजियोंग के जिस्म से अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है। कमरे में एक अजीब सा एहसास भर जाता है और वो हैरानी से सोचता है कि ये क्या हो रहा है। एनर्जी का जोर बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ थम जाता है। सबसे ज्यादा हैरानगी की बात यह थी कि इससे हुजियोंग बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुआ था। पैट्रियार्क योन को यकीन नहीं आता। अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा था और हुजियोंग की प्रोग्रेस उसकी तवक्कुत से भी आगे निकल गई थी। उसी रात हुजियोंग अपने वालिद को बताता है कि उसने फ्लाइंग स्वेलो स्किल को पूरी तरह से ट्रू आज़ूर स्किल में तब्दील कर लिया है। उसका वालिद उसकी इस रफ्तार पर हैरान हो जाता है। हुजियोंग इस तजुर्बे को तस्लीम करता है और कहता है कि उसके लिए एक खास वक्त था, क्योंकि उसने अपने वालिद की को महसूस किया। पैट्रियार्क योन बेयकीनी के आलम में होता है, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत की तारीफ करता है। थोड़ी देर के बाद वो आने वाली गैदरिंग ऑफ सक्सेसर्स का जिक्र करता है और कहता है कि इस दफा वो जिपियोंग को भेजने का फैसला कर चुका है, जिस पर हुजियोंग बिना किसी अफसोस के साथ सिर्फ ठीक है कहता है। उसके वालिद हैरान होकर उससे पूछते हैं कि क्या वो वाकई इस फैसले पर खुश है। हुजियोंग यकीन दिलाता है कि उसे शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे उन जवान वारिसों के बीच रहना पसंद नहीं जो अपने आप पर फख्र करते हैं, और इस बात को सिर्फ सोच कर ही उसका दिल भर जाता है। 15 तारीख से पहले जिपियोंग और हुजियोंग ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड के साथ अनहोई के सफर पर निकल जाते हैं। जिपियोंग बहुत पुरजोश होता है और इस ट्रिप का शिद्दत से इंतजार करता है। 1 महीने बाद वो अनहोई सिटी पहुंचते हैं। जब वो शहर के रश भरे रास्ते से गुजरते हैं, जिपियोंग का ध्यान फौरन खाने के स्टॉल्स पर जाता है। वो जोश से कहता है कि खाना कितना लजीज लग रहा है। इस दौरान हुजियोंग अपने असल मकसद के बारे में सोचता है, जबकि वो असल में गैदरिंग ऑफ सक्सेसर के लिए आया था। लेकिन वो सोचता है कि ये अपने दुश्मन की असल फितरत को जानने का बेहतरीन मौका है। उसे यकीन था कि विलन की और हैंड टू हैंड टेक्निक का ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से ताल्लुक है। उसके अपने क्लैन के अलावा बाकी 6 ग्रेट क्लैंस भी इस गैदरिंग में शामिल हो रहे हैं, जिनमें नामजुंग, मोयोंग और डेंग क्लैंस मशहूर हैं। लेकिन उसे बाकी 3 क्लैंस पर भी ध्यान देना है, जिनमें पेंग, मियोंग और जूक है। अनहोई सिटी के करीब एक जंगल में एक अनजान शख्स ज्यूक क्लैन के ज्यूक जू पर अपनी फायर टेक्निक से हमला करता है और उसे चिढ़ाता है। जू बर्क रफ्तारी से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है और दरख्तों के पीछे छुप जाता है। हमलावर जू की तलाश में उधर उधर देखता है और तस्लीम करता है कि जू की रफ्तार बहुत तेज है। उसी वक्त जूक अहयून वहां आती है और उस शख्स को डांटती है, कहती है कि वो फायर टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है, जबकि आसपास पुराने दरख्त भी हैं। फिर बिना रुके वो उस पर हमला करती है और उसे दूर फेंक देती है। जू वापस आता है और गिला करता है कि उसे हमेशा चिढ़ाया जाता है। आयून अपने बालों को बांधती है, एक बोरा उठाती है और मुस्कुरा के कहती है कि अगर उसे ये नाइंसाफी लगती है तो वो पहले पैदा होता, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन है और ये जिम्मेदारी उसी की बनती है। फिर वो उसे जल्दी से आगे जाने का कहती है और साइड पे चलती हुई बताती है कि उसे भूख लगी है। थोड़ी देर बाद वो भागती है और कहती है कि अगर और देर हो गई तो वो रिंग ऑफ सक्सेसर्स के लिए लेट हो जाएंगे। जू मुश्किल से उसके पीछे भागता है और उसे उसके लिए रुकने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि थोरनी मिलोडे पेविलियन में ज्यूकजू और एह्यून एक होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अचानक एह्यून को दूर से चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। वो रुककर गौर से सुनती है और वो जू की तरफ मुड़कर उससे पूछती है कि क्या उसने भी सुना। बिना उसके जवाब का इंतजार किए वो फौरन उठकर बाहर निकल जाती है और जू को भी उसके पीछे आने का कहती है, लेकिन जू वहीं बैठा रहता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं सुना। एह्यून हवा में उड़ती हुई बाहर जाती है और देखती है कि 2 आदमी लड़ रहे हैं।
ان میں سے ایک ہو جیونگ ایک آئرن روڈ پکڑے ہوتے ہیں اور اپنے مخالف کی ٹیکنیک پر طنز کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کا انداز ٹھیک ہے لیکن کیا وہ اصل لڑائی جیسا لڑ سکتا ہے؟ پھر وہ روڈ اپنے مخالف پر پھینکتا ہے جو آدمی اسے پکڑ لیتا ہے، دانت بھینچ کر کہتا ہے کہ اسے ایک اور موقع دیا جائے۔ لڑائی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ جو اور اہیون جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھتے ہیں۔ مخالف ہو جیونگ پر آئرن روڈ سے حملہ کرتا ہے لیکن ہو جیونگ آسانی سے بچ جاتا ہے۔ پھر وہ پلٹ کر حملہ کرتا ہے اور مخالف آئرن روڈ سے بچاؤ کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہو جیونگ اس کے پیروں پر وار کرتا ہے۔ جب مخالف بچنے کے لیے کودتا ہے، ہو جیونگ اس کے پیٹ پر زور سے ایک وار کرتا ہے اور وہ چیخ کر گر جاتا ہے۔ آہیون یہ چیخ سن کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی آواز تھی جو اس نے پہلے سنی تھی۔ ہو جیونگ کا مخالف شکست کھا کر گر جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس کا جسم اب ہلکا محسوس ہو رہا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ٹرو آزیور اسکل ٹیکنیک زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ 4 گارڈین گوسٹ ٹیکنیک پر جلد ہی عبور حاصل کر لے گا۔ ہو جیونگ بلو آپریشن اسکواڈ کے لیڈر شنمو کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے نہانا ہے اور اسے مہمان کا خیال رکھنے کو کہتا ہے۔ شنمو ادب سے کہتا ہے کہ وہ پورا دن انتظار بھی کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آہیون آتی ہے اور شنمو سے معافی مانگتی ہے کہ وہ بنا اجازت آ گئی۔ وہ بتاتی ہے کہ اس نے چیخ سنی اور لڑائی دیکھ کر رک گئی۔ ہو جیونگ اس کا نام سن کر سمجھ جاتا ہے کہ وہ زو کلین سے ہے، جیسے اس نے پہلے ان کی محسوس کی تھی۔ آہیون بتاتی ہے کہ اس کا بھائی بھی ساتھ تھا اور وہ اپنے آپ ہی یہاں چلا آیا تھا۔ وہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ اسے ڈانٹے گی اور پھر وہ دونوں دوسری طرف بھاگ جاتے ہیں۔ ہو جیونگ ان دونوں کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ ان کی اور اس شخص کی جو اس کے کلین کے خلاف تھا الگ ہے، لیکن وہ ہمیشہ احتیاط برتنا چاہتا ہے کیونکہ مریم کی دنیا میں ایک مونک بھی قاتل بن سکتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جب تک وہ ان کے مارشل آرٹس کو عمل میں نہیں دیکھ لیتا وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ آہیون مڑ کے ہو جیونگ کو دیکھتی ہے جو کہ پہلے ہی ان کو گھور رہا ہوتا ہے اور یہ سوچتی ہے کہ وہ کس کو ڈانٹ رہا ہے۔ اسی رات ہوٹل میں اچانک آگ لگ جاتی ہے اور لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ ایک عجیب سا آدمی آگ سے حملہ کرتا ہوا سکسیسر ریزیڈنس کی طرف جاتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جس نے اس کے ساتھی کو چوٹ پہنچائی وہ سامنے آ جائے ورنہ وہ سب کچھ جلا دے گا۔ جو اور آہیون اپنے کمرے کی بالکنی سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو پوچھتا ہے کہ یہ آگ کس بات کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کل کی لڑائی کا نتیجہ ہے۔ جب جو حیرت سے اس بات کی وضاحت مانگتا ہے، آہیون بتاتی ہے کہ یہ شخص اس کا لیڈر ہے جسے انہوں نے جنگل میں شکست دی تھی۔ جو گھبرا کر کہتا ہے کہ انہیں یون کلین سے مدد مانگنی چاہیے۔ آہیون ہوا میں اڑ کر کہتی ہے کہ وہ خود اس معاملے کو دیکھے گی۔ وہ اس عجیب و غریب آدمی سے کہتی ہے کہ آگ سے کھیلنا بند کرے۔ اسی وقت اس کا ساتھی آگے بڑھ کر اپنے لیڈر کو بتاتا ہے کہ یہی وہ لڑکی ہے جس نے اسے ہرایا تھا۔ وہ اپنے لیڈر کو مشورہ دیتا ہے کہ اس لڑکی کو قید کرے اور سزا دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، لیڈر اس کو زور سے مکہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے آہیون نظر نہیں آ رہی۔ وہ اسے نیچے آنے کو کہتا ہے تاکہ دونوں آمنے سامنے بات کر سکیں اور ایک دوسرے سے تعارف کروا سکیں، لیکن جب آہیون منع کر دیتی ہے تو لیڈر اور اس کے ساتھی اس پر فائر اٹیک کر دیتے ہیں۔ آہیون یہ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ کوئی عام حملہ نہیں بلکہ شیڈی پام ٹیکنیک ہے جو جسم میں کی داخل کر کے جان لیوا بیماری پیدا کرتی ہے۔ اسی وقت جو ہوا میں اڑتا ہے اور اپنی لیسر اسکائی فٹ سولو ٹیکنیک سے اس حملے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ عجیب سا شخص فوراً زہریلا حملہ کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے اور زہر فوراً سے اس کے جسم میں اتر جاتا ہے اور جو خون کی الٹی کرنے لگتا ہے۔ آہیون فوراً اس کی طرف دوڑتی ہے۔ وہ اس کی خوشبو سے پہچان لیتی ہے کہ یہ زہر ہے۔ وہ عجیب و غریب شخص کہتا ہے کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس اینٹیڈوٹ ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسے ان کو زندہ رکھنا ہوگا تاکہ انہیں بیچ سکیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ پھر ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنا تعارف لارڈ آف فائر اینڈ لائٹننگ دا گریٹ میبنگ فلسفی کے طور پہ کرواتا ہے۔ آہیون غصے میں اسے فوراً اینٹیڈوٹ دینے کا کہتی ہے۔ اس دوران ہو جیونگ خاموشی سے اپنے کمرے کی بالکنی سے سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا بھائی جپیونگ اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا بلو آپریشن اسکواڈ کو آگ بجھانے کے لیے بھیجنا چاہیے، اور بتاتا ہے کہ زیو کلین بھی مدد مانگ رہا ہے۔ ہو جیونگ پرسکون رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ فکر کی بات نہیں ہے کیونکہ ہوا الٹی سمت چل رہی ہے، اس لیے آگ اور نہیں پھیلے گی، لیکن جپیونگ کہتا ہے کہ ہمیں جلدی سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر بھی ہو جیونگ چپ رہتا ہے اور لڑائی دیکھتے ہوئے خود سے کہتا ہے کہ لڑائی جاری رکھو کیونکہ وہ زیو کلین کی مارشل آرٹس دیکھنا چاہتا ہے، اور دل میں فیصلہ کرتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس کے کلین کے برباد ہونے کے ذمہ دار نکلے تو وہ ہوبے کے پورے علاقے کو آگ میں جھونک دے گا اور شروعات انہی سے کرے گا۔ اور دوسری طرف جب آہیون اپنی طاقت جمع کر رہی ہوتی ہے، مابنگ اسے غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ضرور زیو کلین کی خفیہ آرٹ ڈیوائن فرسٹ بلیک مسل ٹو ٹیکنیک ہے۔
आह्योन को एहसास होता है कि वक्त कम है, इसलिए वो और ज्यादा ताकत जमा करती है ताकि वो जल्दी से कुछ कर सके। माबंग उसे ताना देता है और कहता है कि वो एक सख्त दिल बहन है जो अपनी सीक्रेट टेक्निक तब इस्तेमाल कर रही है जब उसका भाई पहले ही बेहोश हो चुका है। वो उसकी बातों से और गुस्से में आ जाती है और अपने दांत पीसने लगती है और उसका हौसला और बढ़ जाता है। वो माबंग की तरफ दौड़ती है और उसे लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाता है। फिर वो जवाब में हमला करता है, लेकिन आह्योन उससे बची रहती है और साथ साथ अपनी सीक्रेट टेक्निक की ताकत भी जमा करती रहती है। फिर वो उसके करीब जाती है और स्काई फुट टेक्निक से उसके पेट पर जोरदार वार करती है। वार इतना तेज होता है कि माबंग गिरते गिरते संभलता है। ये देखकर आह्योन खुशी से कहती है कि उसका हमला कामयाब रहा। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो फौरन हवा में छलांग लगाती है ताकि फिर से उसके करीब जा सके, लेकिन माबंग फौरन की हथियार उसकी तरफ फेंकता है। आह्योन मुश्किल से बचती है और सोचती है कि इतने जोर का वार खाने के बाद वो इतनी जल्दी कैसे पलट के हमला कर सकता है। माबंग गुस्से से चीखता है कि उसे बहुत चोट लगी है और अब वो उसे मार डालेगा। इसके साथ ही वो एक और ताकतवर हमला करता है। आह्योन मुश्किल से उसके वार से बचती है। जब वो दोबारा उसकी तरफ हमला करने दौड़ती है तो वो अचानक उसे लात मारने की कोशिश करता है। आह्योन फौरन उसकी टांग पकड़ लेती है और जोर से मुक्का मारती है। वो उसे धक्का देकर पीछे कर देता है। आह्योन जमीन पर गिरती है और थकी हुई मुश्किल से सांस ले रही होती है। माबंग उसे देखकर तंज करता है और कहता है कि उसे पता था कि मार्शल आर्ट्स उसके जिस्म पर बहुत बोझ डालेगा। अपने साथियों की तरफ मुड़ के वो उनको इसे पकड़ने का हुक्म देता है क्योंकि अब वो लड़ने के काबिल नहीं रही। जब उसके साथी आह्योन की तरफ बढ़ते हैं, वो जमीन पर बैठी गहरी सांसें ले रही होती है। उसी वक्त जिपियोंग जो बालकनी पर खड़ा हुआ था छलांग लगाकर नीचे आता है, ये कहते हुए कि वो ज्यू क्लैन की मदद करेगा। हुजियोंग एक लंबी सांस लेता है, अपने इर्द गिर्द के हालात को देखता है और कहता है कि वो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिना हिचकिचाए वो अपनी आयरन रोड को मजबूती से पकड़ता है और पूरी ताकत से दुश्मनों की तरफ फेंकता है। उनका एक साथी आह्योन पर हमला करता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसे लगता है कि अब उसके जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं रही। उसके सारे साथी उसे घेर लेते हैं और उनमें से एक उसका मजाक उड़ाता है और उसे एक जंगली घोड़ी से तस्बीह देते हैं। वो अपने लीडर की तरफ मुड़ के उससे पूछते हैं कि क्या वो उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर सकते, अचानक एक आयरन रोड बिजली की तरह आकर सीधा उस हमला आवर के सर पर लगती है। चोट इतनी शदीद होती है कि उसका सर कटकर हवा में उछल जाता है। आह्योन हैरत से ये सब देखती है। जैसे ही हुजियोंग करीब आता है, सब उसे हैरत से देखने लगते हैं। लीडर गुस्से में पूछता है कि वो कौन है। हुजियोंग लगातार आह्योन को देख रहा होता है। आह्योन महसूस करती है कि शायद वो ग्रीन माउंटेन यून खानदान का यंग मास्टर है जो उसकी मदद के लिए आया है, लेकिन फिर उसे हैरत होती है और सोचती है कि उसे गुस्से से क्यों घूर रहा है। उनमें से एक साथी जो हथियार पकड़े हुए होता है हुजियोंग की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अगर कैप्टन कुछ पूछे तो जवाब देना चाहिए, लेकिन हुजियोंग सिर्फ उससे घूरता है और वो साथी फौरन जमीन पर गिर जाता है। हुजियोंग चुपचाप उसका गिरता हुआ हथियार उठाता है और अपने कंधे पर रख लेता है। बाकी साथी जो अब डरे होते हैं उसे घेर लेते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं। वो पूछते हैं कि उसने अभी क्या किया। हुजियोंग कोई जवाब नहीं देता और अचानक मंजर से गायब हो जाता है। स्क्वाड लीडर घबराकर उसे रोकने का हुक्म देता है, कहता है सब फौरन उसके पीछे भागें। मगर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचते हैं, हुजियोंग उन सबको एक एक करके गिरा देता है। कुछ ही लम्हों में वो सबको नीचे गिरा देता है। माबंग हैरान होकर देखता है कि हुजियोंग ने सबको पलक झपकते खत्म कर दिया। वो देखता है कि सबकी मौत उनके प्रेशर पॉइंट्स पर वार करके हुई है। गुस्से से भरा माबंग अपनी एनर्जी इकट्ठी करता है और चिल्लाता है कि हुजियोंग कौन है। उधर हुजियोंग आह्योन के पास आता है। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है, लेकिन महसूस करती है कि उसने उसका बाजू पकड़ लिया है। वो हैरान होकर पूछती है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो उसे चुप करा देता है और उसे अपनी असली की दिखाने को कहता है। जब वो उसका बाजू पकड़कर उसकी स्किल्स को महसूस करता है तो ठंडे लहजे में पूछता है क्या वो उसकी दुश्मन है। फिर बिना किसी वार्निंग के उसका हाथ छोड़ देता है और उसे वहां से अपने भाई के साथ जाने को कहता है। आह्योन हैरानी से पूछती है कि वो अचानक उसे क्यों भेज रहा है और बताती है कि माबंग का असल हथियार उसकी जहरीली दुनिया है, जिनका हल्का सा भी वार जानलेवा हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, हुजियोंग सख्ती से उसे जाने का कहता है क्योंकि वो सिर्फ वहाँ रुकावट बन रही थी। खतरा महसूस करके आह्योन अपने जख्मी भाई को उठाती है और जंग के मैदान से चली जाती है। माबंग हुजियोंग का मजाक उड़ाता है कि वो इस हालत में भी लड़की के सामने स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहा है। हुजियोंग पुरसकून लहजे में कहता है कि उसकी ताकत साइलेंट व्हाइट फ्रोस्ट से नहीं आई बल्कि साइलेंट रेड फायर से आई है। माबंग हैरान होकर पूछता है कि उसे इसकी टेक्निक के बारे में कैसे पता। हुजियोंग इस सवाल का जवाब देने के बजाय अपना हथियार घुमाता है और उसे अंदाजा लगाने को कहता है कि अब वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेगा।
आह्यून जो अपने जख्मी भाई को लेके जा रही होती है, गुस्से में कहती है कि हुजियोंग कितना इरिटेटिंग है और कसम खाती है कि अगली बार वो उसे अपना कर्जदार बनाएगी। वो गुस्से में जोर से चिल्लाती है और यून क्लैन के बड़े बेटे को पुकारती है। दूसरी तरफ शिन्मो जिपियोंग को आवाज देता है और रिपोर्ट करता है कि साउथ वेस्ट गेट की आग बुझा दी गई है और पूछता है कि क्या उन्हें अब यंग मास्टर की मदद को जाना चाहिए। जिपियोंग जमीन पर गिरे हुए माबंग के हारे हुए साथियों को देखता है, थोड़ी देर रुकता है और शिन्मो से कहता है कि क्या उसे लगता है कि मेरे भाई को वाकई हमारी मदद चाहिए। तभी हुजियोंग माबंग पर वार करता है, लेकिन वो अपने छुपे हुए हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर उनका उस पर कोई असर नहीं होता। हुजियोंग एक और ताकतवर वार करता है और माबंग दर्द से चिल्ला उठता है। माबंग दोबारा हथियार फेंकता है, लेकिन हुजियोंग आसानी से बच जाता है। वो हवा में उल्टा घूमकर माबंग के पीछे जाकर उसके सर पर जबरदस्त वार करता है। फिर कहता है अब इस लड़ाई का खात्मा हो जाना चाहिए और वो अपनी बोरियत जाहिर करता है। माबंग मुश्किल से खड़ा होता है और बेयकीनी से उसकी बात सुनता है। हुजियोंग कहता है अगर वो वाकई साइलेंट रेड फायर का इस्तेमाल कर रहा है तो वो इससे कुछ बेहतर देखने की उम्मीद रखता है, मगर उसे सिर्फ मायूसी हुई क्योंकि ये तो सिर्फ ड्रैगर्स को बेहतरीन बनाने का एक तरीका था। वो उससे पूछता है कि क्या उसे शर्म नहीं आती, वो इतनी बड़ी टेक्निक को इतने खराब तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। माबंग गुस्से में कहता है तुम सब कुछ जानते हो क्या, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। उसका मजाक उड़ाते हुजियोंग कहता है वो खुद को लाइट और फायर का लॉर्ड कहता है, लेकिन इसके किसी भी हमले में फायर का नामो निशान भी नहीं था। वो इसे इस लक़ब के नाकाबिल करार देता है। फिर वो शक जाहिर करता है कि क्या माबंग ने वाकई साइलेंट गोड से ये तालीमात सीखी हैं, और आखिर में वो ये तक पूछता है क्या उसने कभी साइलेंट रेड फायर की असली पावर देखी भी है या नहीं। ये सुनते ही माबंग की झुंझुलाहट शदीद गुस्से में बदल जाती है। हुजियोंग जब माबंग के सामने आता है तो उसे लाइट पाथ लीडर का वो सबक याद आता है जो 4 गार्डियन गॉड्स की टेक्निक के बारे में था। सबक का आगाज नॉर्थ डिवाइन एनर्जी की अहमियत से होता है। हुजियोंग ने हैरानी से पूछा था कि इसका आगाज यहीं से क्यों होता है। लाइट पाथ लीडर ने बताया था कि वाटर गॉड्स की एनर्जी 4 गार्डियन में सबसे ज्यादा मजबूत और साथ ही सबसे ज्यादा नाजुक भी होती है। अपनी पीक पर ये इतनी ताकतवर होती है कि बड़े हथियारों और तोप का सामना कर सकती है और साथ ही मार्शल आर्ट्स को बारीकी से संवार सकती है। ये डिवाइन एनर्जी सेक्सटेजनरी साइकिल की 16वें साल के वाटर गॉड से जुड़ी हुई थी, जो इस्तेकाम और बर्दाश्त की मिसाल थी। और गार्डियन की ताकत को अपने अंदर जगाने के लिए वो सवाल करता है कि उसे क्या करना होगा, मगर लाइट पाथ के लीडर ने कहा कि अभी वो इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। उसने मशवरा दिया कि हुजियोंग अपने दुश्मन की नफरत और लड़ाई के जज्बे का फायदा उठाए, क्योंकि जंग की शिद्दत जैसे हेलफायर कुदरती तौर पर वाटर गॉड की एनर्जी को जगा देगी। अब माबंग जो अपने इर्द गिर्द आग जमा कर रहा होता है, गुस्से से कहता है कि अगर हुजियोंग चाहता है तो वो अपनी असल ताकत दिखाएगा। फिर वो अपने छुपे हुए हथियार निकालता है और चारों तरफ आग फैला देता है ताकि हुजियोंग को घेर ले। हुजियोंग सुकून के साथ मंजर देखता है। तभी माबंग आग का वार करता है और कहता है कि ये साइलेंट रेड फायर की असल तालीम है। शोले जैसे ही पास आते हैं हुजियोंग फौरन पीछे हटकर बच जाता है। माबंग एक और वार करता है, लेकिन हुजियोंग फिर बच जाता है और कहता है कि इतनी कमजोर आग तो एक चूंटी को भी कुछ नहीं कर सकती। फिर माबंग के वार से बासानी बचते हुए वो माबंग को चिढ़ाता है और कहता है क्या उसके पास कोई और हुनर भी है। ये सुनकर माबंग गुस्से में चीखता है, गालियां देता है और कहता है कि वो उसके अंदर तक सब कुछ जला देगा। वो एक और आग का वार करता है और मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन हुजियोंग एक तरफ हट जाता है। माबंग का मुक्का दीवार में फंस जाता है और हुजियोंग हंसकर उसे भड़काता है। माबंग बार बार कोशिश करता है, लेकिन हुजियोंग हर बार आसानी से बच जाता है। अपनी सारी ताकत और स्किल्स के बावजूद वो उस तक नहीं पहुंच पाता। फिर अचानक उसका एक वार हुजियोंग के हथियार को लगता है और वो हथियार उससे गिर जाता है। माबंग फौरन मौका देखता है और एक और वार करता है। जब वो मुक्का मारने की कोशिश करता है, हुजियोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। माबंग धमकी देता है कि उसे जलाकर राख कर देगा, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि उसके आसपास पानी की भाप उठ रही है और हैरानी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि नीचे पानी जमा हो रहा है जो इसकी आग की स्किल्स को एक्टिवेट होने से रोक रहा है। घबराहट में उसे एहसास होता है कि उसकी ब्लैक आर्ट फेल हो रही है। हुजियोंग सुकून से कहता है सेक्सेजनरी साइकिल के 16वें साल का वाटर गॉड यानी कि नॉर्थ का हुक्मरान अब जाग गया है। माबंग जैसे ही उस कछुए की शक्ल के मंजर का सामना करता है, वो फिर से आग बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो हैरान होकर सोचता है क्या हुजियोंग ने उसकी सारी आग जज़ब कर ली है। शक और मायूसी में मुब्तला होकर वो सोचता है कि क्या यही है साइलेंट रेड फायर की असल ताकत। वो गुस्से से हुजियोंग को गाली देता है और एक और मुक्का मारकर पूछता है कि उसने उसके अंदर की एनर्जी के साथ क्या किया। हुजियोंग बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक जोरदार लात मारता है और माबंग आग की लपटों की तरफ जाकर गिर जाता है।
हुजियोंग उसकी तरफ बढ़ता है और तंजिया अंदाज में उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने टर्टोइस को बुलाना आसान कर दिया। माबंग जब अपनी मौत को करीब जानकर उससे रहम की भीख मांगता और वादा करता है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो कुछ बदले में देगा। हुजियोंग उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि वो उस आग से खेले जिससे उसे इश्क था, और फिर आखिरी बार उसके चेहरे पर लात मारकर उसे उसी आग में गिरा देता है जो उसने खुद फैलाई थी। जिपियोंग अपने भाई की ये ताकत देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन तबाही के असरात साफ नजर आ रहे थे। मजदूर बहाली के काम में मसरूफ थे। एक फकीर जिसका नाम गी ड्विक्सन था उनके पास आया और बाहर की दीवारों के बारे में पूछा, ये समझाते हुए कि आग की शिद्दत से वो काफी मुतासिर हुई होंगी। एक मजदूर ने जवाब दिया कि आग के फैलाव के हिसाब से नुकसान उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना सोचा गया था, और उसे एक मुआवजा करार दिया। उसने ये भी बताया कि ग्रीन माउंटेन यून क्लैन के यंग मास्टर ने ही आग लगाने वाले को पकड़ा था। ड्यूक्सन ने तजस्सुस से मजीद पूछा तो दूसरे मजदूर ने कहा कि यंग मास्टर ने न सिर्फ मुजरिम को पकड़ा बल्कि उसे जिंदा जला दिया। एक और मजदूर ने शक का इजहार करते हुए कहा कि इतने मोहतरम और शरीफ ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला शख्स ऐसा काम कैसे कर सकता है, मगर पहला मजदूर अपनी बात पर कायम रहा। बातचीत के दौरान काम के निगरान मजदूर ड्यूक्सन के पास आए, खुशी से उसका हाथ थामकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर उन्हें ड्यूक्सन के आने का पहले पता होता तो अपना शेड्यूल बदल लेते। ड्यूक्सन ने इनकिसारी से कहा कि वो एक मामूली फकीर है और थोरनी मेलोडी पैवेलियन के लोड का वक्त लेना उसकी जरूरत नहीं। उसने वजाहत दी कि वो सिर्फ मरम्मती काम की तरक्की देखने आया है। निगरान ने उसे यकीन दिलाया कि मरम्मत का काम ठीक चल रहा है और इसमें भिखारियों की जमात की मदद भी शामिल है। जवाबन ड्यूक्सन ने मजीद मदद की ऑफर दी और आइंदा भी जरूरत पड़ने पर उससे मदद मांगने को कहा। फिर वो रवाना हो गया। उसके जाने के बाद एक मजदूर ने निगरान से ड्यूक्सन की शनाख्त के बारे में पूछा कि वो कौन है। निगरान ने इंकशाफ किया कि ड्यूक्सन ने ही उन्हें थोरनी मेलोडी पैवेलियन की मदद के लिए रखा है। वो इन्हें बताता है कि मजीद ये कि वो भिखारियों की जमात जो कि एक खुफिया तंजीम है का अगला वारिस है। मजदूर ये सुनकर हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ ड्यूक्सन हैरानी से दो चार होता है और अपनी दिलचस्पी का इजहार करता है। वो कहता है कि वो शिद्दत से चाहता है कि ग्रीन माउंटेन यून क्लैन के यंग मास्टर को अपनी आंखों से देखे। उसे यह बात निहायत हैरानकुन लगती है कि कोई शख्स माबंग जैसे शख्स को, जो अनऑर्थोडॉक्स के 13 अहम अफराद में से एक था, इतनी आसानी से हरा सकता है। ये सोचकर वो खुश हो जाता है और फैसला करता है कि अगली बार वो गैदरिंग ऑफ सक्सेसर में फकीर बनकर जाएगा। इधर हुजियोंग गार्डन टर्टोइज की टेक्निक पर गौर करते हुए प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो सोचता है कि ये एक डिफेंसिव मार्शल आर्ट है, मगर डिफेंस के दौरान अब्जॉर्ब होने वाली ताकत को हमले में भी बदला जा सकता है। वो ये भी जानता है कि ये टेक्निक बुरी एनर्जी को साफ करने में भी कारआमद है। इसके अलावा वो मानता है कि ये तरीका गंदी की को साफ करने के लिए बहुत फायदेमंद है। पुराने जमाने से लोग समझते थे कि अगर गार्डन टर्टोइज की मजबूत हो तो जिस्म में कोई भी गंदी की नहीं रहती। इसी वक्त शिन्मो और उसकी टीम उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। हुजियोंग हाँ में जवाब देता है और फिर जिपियोंग के बारे में पूछता है। शिन्मो जिपियोंग की कुछ देर अकेले रहने की ख्वाहिश के बारे में बताता है। हुजियोंग हैरानी से पूछता है कि क्या उसने वाकई ऐसा कहा, मगर तभी उसे अपनी टीम के चेहरों पर बेचैनी नजर आती है। परेशान होकर वो वजह जानने की कोशिश करता है कि तभी आह्युन आ जाती है और उसे रुकने को कहती है। हुजियोंग उसे पहचान कर कहता है कि अगर वो ठीक हो गई है तो ज़्यू क्लैन वापस चली जाए, मगर आह्युन कहती है कि उसे उससे कुछ पूछना है। दूसरी तरफ जिपियोंग एक दरख्त की शाख पर बैठा होता है और अपने भाई हुजियोंग के बारे में सोच रहा होता है। वो हैरान होता है कि क्या वो अपने भाई को वाकई जानता है। उसकी सोच उस वक्त टूटती है जब वो हुजियोंग को देखता है जो आह्युन को उसके पीछे आने से मना कर रहा होता है। आह्युन कहती है कि वो उस वक्त तक उसके पीछे चलती रहेगी जब तक उसे जवाब नहीं मिलता। अपने भाई और ज़्यू क्लैन की लड़की के दरमियान अचानक गुफ्तगू उसकी उनमें दिलचस्पी बढ़ा देता है। जिपियोंग ये मंजर देखकर हैरान होता है और चुपके से दरख्त के नीचे उतरकर उनके पीछे चल देता है। हुजियोंग रुककर आह्युन से पूछता है कि वो क्या जानना चाहती है। वो अपनी हथेली पर एनर्जी जमा करके बताती है कि उसने माबंग पर डिवाइन फर्स्ट ब्लैक बर्च ट्री की टेक्निक का इस्तेमाल किया था, मगर उसे कुछ नहीं हुआ। वो पूछती है कि माबंग को कुछ क्यों नहीं हुआ और हुजियोंग ने उसे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। हुजियोंग उससे उसकी एनर्जी के बारे में पूछता है कि क्या वो वुड की है। जब वो तस्दीक चाहती है तो वो कहता है कि उसकी एनर्जी बर्च ट्री की तरह महसूस होती है, ठंडी, नरम और ताज़ा। फिर वो बताता है कि माबंग की मार्शल आर्ट्स जो साइलेंट रेड फायर की तालीम पर मबनी है, फायर की जैसी है। वो पूछता है कि क्या वो जलती हुई आग में लकड़ी डालकर उसे बुझा सकती है, मतलब ये कि उसकी एनर्जी माबंग को हरा नहीं सकती। ये सुनकर आह्युन अपनी मुट्ठी भींच लेती है और उसे एहसास होता है कि वो एनर्जी की उन खुसूसियात को समझने में नाकाम रही थी। फिर वो कहती है कि उसे एक और सवाल पूछना है। वो पूछती है कि क्या हुजियोंग को ये जुल्म नहीं लगा कि माबंग को जिंदा जलाकर मारा गया, ये सोचते हुए कि उसे लाइट एंड फायर का लॉर्ड कहा जाता है।
तो हुजियोंग पूछता है उसे जालमाना क्यों समझा जाएगा। आह्यून ने वजाहत की कि कोई भी आम इंसान इसे जालमाना ही समझेगा और जिस किसी ने इस मंजर को देखा होगा वो जरूर चौंक गया होगा। ये सुनकर उसे एहसास होता है कि जिपियोंग अकेला क्यों रहना चाहता था और माहौल इतना संजीदा क्यों लग रहा था। फिर वो कहता है कि उसका ताल्लुक ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से है, मगर उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे कि वो ब्लैक एम्परर हो। लेकिन माबंग ने आह्यून और जिपियोंग दोनों को धमकाया था और आग लगाई और बेशुमार जानों को खतरे में डाला था। वो कहता है कि मौत सबके लिए बराबर है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, मगर वो मानता है कि मारने का तरीका मुख्तलिफ होना चाहिए। बुरे लोगों को तकलीफ दे मौत मिलनी चाहिए, यही इंसाफ है। उसकी बातें सुनकर आह्यून सोचती है कि ये लड़का आखिर है कितने साल का। आह्यून को वो अपनी उम्र का लगता है, मगर उसकी बातें ऐसी हैं जैसे उसका बाप हो। इसी दौरान हुजियोंग सोचता है कि शिन्मो उसका इंतजार कर रहा होगा तो उसे चलना चाहिए। जैसे ही वो जाने लगता है, आह्यून कहती है कि उसका लहजा और अंदाज बिल्कुल एक बूढ़े आदमी की तरह लगता है। हुजियोंग कहता है कि वो सिर्फ 18 साल का है। आह्यून कहती है कि वो हमेशा ऐसा चेहरा बनाता है जैसे जिंदगी के तमाम दिन गुजार चुका हो। हुजियोंग कुछ नहीं कहता, बस महसूस करता है कि दरख्त के पीछे कोई है, मगर वो नजरअंदाज कर देता है। फिर वो सोचता है कि एक दिन जिपियोंग सब समझ जाएगा। आह्यून दिल में सोचती है कि उसने हमेशा हुजियोंग से मदद ली है। वो हुजियोंग को बताती है कि उसे दूसरों को एहसान लेना पसंद नहीं है। हुजियोंग उसकी तरफ देखे बगैर कहता है कि उसे इस एहसान के बदले कुछ करना चाहिए ताकि वो शर्मिंदा ना हो। आह्यून गुस्सा होकर उसे मुंह बंद करने का कहती है और फिर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो उससे 1 साल बड़ी है और उसे उसको बहन कहना चाहिए। अनहोई सिटी में गैदरिंग ऑफ सक्सेसर से 2 दिन पहले हुजियोंग और जिपियोंग ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड के साथ सफर करते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो शिन्मो हुजियोंग की तरफ मुड़कर कहता है कि वो अनहोई शहर पहुंच गए हैं। वो एक घर के दरवाजे पर आवाज देकर पूछते हैं कि अंदर कोई है। जब दरवाजा खुलता है तो अपना तारुफ करवाते हुए वो कहता है कि वो ग्रीन माउंटेन यून क्लैन से है। दरवाजा खोलने वाला शख्स थोड़ा हैरान होकर उनके क्लैन का नाम दोबारा दोहराता है। शिन्मो मौजबाना अंदाज में उसे सलाम करता है और अपनी शनाख्त की तस्दीक करता है कि वो इस काफिले का निगरान है। जवाबन वो शख्स भी तारुफ करवाता है कि वो सिचुअन क्लैन से हान हुमियोंग है और यून क्लैन के वॉरियर से मिलने पर खुशी का इजहार करता है। हुजियोंग फौरन से नाम को पहचान लेता है और उसे सिचुअन क्लैन पोजीशन टेक्निक से मशहूर शोहरत याद आ जाती है। उसे ड्रैगन स्टील व्हिप हान हुमियोंग का लकब भी याद आ जाता है। फिर उसकी नजर हान हुमियोंग के पीछे खड़े शख्स पर पड़ती है और वो फौरन समझ जाता है कि वो टांग क्लैन से है। टैंग क्लैन के शख्स को देखकर हुजियोंग को अपनी पुरानी लड़ाई याद आती है और उसे याद आता है कि उसका टैंग क्लैन से एक हिसाब बाकी है। जब वो उस शख्स को पहचानता है तो वो फौरन समझ जाता है कि ये टैंग क्वान का बेटा है। शिन्मो फिर तारुफ करवाता है और हान हुमियोंग को बताता है कि उनके क्लैन के पहले जवान यंग मास्टर हुजियोंग हैं और दूसरे यंग मास्टर योन जिपियोंग। हुमियोंग जवाब देता है कि उसने उन दोनों के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन थोड़ा परेशान होकर पूछता है कि दूसरा यंग मास्टर कौन सा है। वो बताता है कि उसने जिपियोंग की बेमिसाल सलाहियत के बारे में बहुत सुना था। ये बात जिपियोंग और शिन्मो दोनों को पसंद नहीं आती। शिन्मो कुछ कहने ही वाला होता है कि हुजियोंग आगे बढ़कर कहता है कि स्क्वाड लीडर को चाहिए कि अब बैठ जाएं और खाना खाएं क्योंकि उसे भूख लगी है। ये कहकर वो गुफ्तगू छोड़ देते हैं। हुमियोंग को हुजियोंग का रवैया बुरा लगता है और कहता है कि उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। टैंग यंगसियोन ये सब देखकर कहता है कि हुजियोंग में हिम्मत है क्योंकि उसने टैंग कबीले के आदमी से बदतमीजी करने की जुर्रत की और वो गैदरिंग ऑफ सक्सेसर के लिए अपनी इंतजार की शिद्दत को जाहिर करता है। 2 दिन बाद गैदरिंग ऑफ सक्सेसर के बैंक्वेट हॉल में हुजियोंग पैंग क्लान के पैंग मैनहू और पैंग डहियो को मुयुंग क्लैन की मुयुंग युहनवा को सलाम करते हुए देखता है। उसे याद आता है कि ये कबीला हैबे के फतेहान के तौर पर जाना जाता है और वो उन जुड़वा भाइयों से 2 दिन पहले मिल चुका था। भाइयों खुशी से हुजियोंग को सलाम करता है और अपना तारुफ करवाता है। हाथ मिलाते हुए हुजियोंग उसकी अंदर की एनर्जी की को महसूस करता है और देख लेता है कि वो किसी विलन से नहीं मिलती। फिर उसकी तवज्जो मुयुंग युहनवा की तरफ जाती है जो मुयुंग गुन की बेटी है। मुयुंग क्लैन के रवैये को याद करके हुजियोंग को गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद पर काबू पा लेता है और फैसला करता है कि फिलहाल उसे उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। वो सोचता है कि अब सिर्फ एक कबीला बाकी है, मुयुंग कबीला। सक्सेसर्स के दरमियान खड़े होकर वो इधर उधर का जायजा लेता है ताकि वो मुयुंग क्लैन के अफराद को देख सके। इसी दौरान आह्यून हॉल में हुजियोंग को ढूंढती है और उसे देख लेती है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसी वक्त नामूद क्लैन का हुयून भी उसे देख लेता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी गुफ्तगू छोड़कर आह्यून की तरफ आ जाता है, लेकिन आह्यून हुजियोंग को आवाज देती है और उसकी तरफ चली जाती है। हुजियोंग उसे देखकर पूछता है कि क्या वो फिर से उसका पीछा कर रही है। आह्यून कहती है कि उनकी मुलाकात को काफी वक्त हो गया है। हुजियोंग बेरुखी से कहता है कि सिर्फ 2 दिन ही तो हुए हैं। वो मुस्कुरा कर कहती है कि वो इसी वजह से देखकर खुश है और शरारत से पूछती है कि क्या वो उसे ढूंढ रहा था।
हुजियोंग उसे झड़क कर कहता है कि उसका पीछा छोड़ दे क्योंकि वो मसरूफ है। दूसरी तरफ हुयून ये सब देखकर नाखुश होता है। वो सोचता है कि ये दोनों साथ क्यों हैं। टेबल पर बैठे चाय पीते हुए आयून हुजियोंग से कहती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि यून क्लैन की मार्शल आर्ट्स इतनी ताकतवर हैं। हुजियोंग कहता है कि इसमें फख्र करने वाली कोई बात नहीं। आयून कहती है कि वो इंकिसारी दिखा रहा है, लेकिन वो वजाहत देता है कि वो सिर्फ सच कह रहा है और उसे अभी और ताकतवर बनना है। वो पूछती है कि क्या वो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बनना चाहता है। हुजियोंग जवाब देता है कि बेहतरीन होना औसत दर्जा होने से बेहतर है। करीब बैठा हुयून जो उनकी बातें सुन रहा होता है दिल में सोचता है कि नामगुक कबीला सबसे ताकतवर है। हुजियोंग उसे बताता है कि मुरिम में कोई भी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले शिकस्त नहीं और एक मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ बेहतरी की कोशिश कर सकता है। आयून इससे इत्तफाक करती है, लेकिन फिर कहती है कि एक शख्स ऐसा है जो वाकई दुनिया का सबसे ताकतवर कहलाने के लायक है। हुजियोंग को 4 डायरेक्शंस मार्शल एम्परर याद आता है जो 300 साल पहले ब्लड रिलीजन के फितने को खत्म कर चुका था। हुजियोंग को उसका नाम थोड़ा बचकाना लगता है। आयून बताती है कि तारीख के मुताबिक 4 डायरेक्शंस मार्शल एम्परर वाकई सबसे ताकतवर था क्योंकि उसने 4 मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल की थी। वो हर एक में अटैक, डिफेंस और इवेजन में बेहतरीन था। वो ये भी कहती है कि उसके पास एक गोल्डन ड्रैगन था जो उसकी खिदमत के लिए था, जिस वजह से उसे येलो ड्रैगन एम्परर का लक़ब मिला। लेकिन वो मानती है कि ये कहानियां कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के पेश की गई हैं। जब वो बोल रही होती है तो महसूस करती है कि हुजियोंग किसी गहरी सोच में है। उसके जहन में आता है कि अटैक, डिफेंस और इवेजन ये सब 4 गार्डियन गोड टेक्निक की खसूसियात हैं और येलो ड्रैगन की 4 ड्रैगन गोड टेक्निक की आला तरीन शक्ल है। ये सोचकर उसे एक हैरत अंगेज नतीजा मिलता है। 4 डायरेक्शंस मार्शल एम्परर ने शायद 4 ड्रैगन गोड टेक्निक हासिल की थी। होश में आते ही वो आयून से कहता है कि उसे और डिटेल में बताए। उसी वक्त टैंग आता है और उनके पास आके कहता है कि लगता है वो लोग मजे कर रहे हैं। बिना किसी जवाब का इंतजार किए वो बैठ जाता है और आयून से कहता है कि क्या वो उनकी गुफ्तगू में शामिल हो सकता है। आयून थोड़ी देर के लिए रुकती है और हुजियोंग की तरफ देखती है जो हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाता है। इस इशारे पर वो इजाजत दे देती है। बैठते हुए टैंग लगातार आयून को घूरता रहता है। ये देखकर वो फैसला करती है कि वो हुजियोंग से उसका तारुफ करवा दे, लेकिन टैंग बीच में उसे ही रोक देता है और कहता है कि तारुफ की जरूरत नहीं क्योंकि वो पहले ही हुजियोंग को जानता है और ये भी कि वो यहाँ उससे मिलने नहीं आया। वो उसे एक कप देता है और चाय डालने का कहता है। आयून उंगली के इशारे से कप वापस उसकी तरफ धकेल देती है और उसे खुद से चाय डालने का कहती है। टैंग फिर से उसे कहता है, लेकिन वो फिर से मना कर देती है। फिर वो हुजियोंग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसके लिए चाय डालने में उसे कोई मसला नहीं था। आयून मजबूत लहजे में बताती है कि हुजियोंग उसका दोस्त है। टैंग मुस्कुराकर पूछता है कि वो भी उसका दोस्त बन सकता है, जिस पर वो जवाब देती है ऐसा जरूर मुमकिन होता अगर वो बदतमीज ना होता। टैंग खुद ही चाय डालता है और कहता है कि वो काफी प्यारी है और उसकी नाफरमानी उन फर्माबरदार लड़कियों से ज्यादा ताज़ा और इंटरेस्टिंग है। इसी वक्त ह्यून पीछे से आता है और टैंग को रुकने का कहता है और उसे लोगों को तंग करने के बजाय उठकर जाने का कहता है। टैंग बेपरवाही से कहता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो टैंग कबीले के शख्स के पीछे ना खड़ा हो। ह्यून जवाब देता है कि क्या ये धमकी उस पर भी लागू होती है जो नामगुक क्लैन से है और तलवारबाज क्लैन में सबसे ताकतवर माना जाता है। टैंग उसकी तरफ मुंह करके कहता है कि ताकतवर तलवारबाज भी असल ताकत वालों के सामने कुछ भी नहीं। ह्यून दिलचस्पी से पूछता है कि टैंग के नजदीक सबसे ताकतवर कौन है। टैंग बिना हिचकिचाए कहता है कि सिचुन टैंग क्लैन। इसी दौरान हुजियोंग ये मंजर देख के खुद से कहता है कि ये तो बस बच्चों का खेल है। उसी लम्हे एक आवाज उनकी बातचीत में मुदाखलत करती है। मुयुंग कबीले के मुयुंग हुरिम आगे बढ़कर उनकी गुफ्तगू पर सवाल उठाता है। वो तंजिया अंदाज में हंसता है और कहता है ऐसी क्या बात है जो तुम खुद को सबसे ताकतवर समझ बैठे हो जब मुयुंग क्लैन यहाँ मौजूद है। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं, जबकि हुजियोंग पुरसकून तरीके से अपना कप रख देता है और नोट करता है कि ये शख्स मुयुंग क्लैन से है। हुरिम टैंग से सवाल करता है कि वो बेमिसाल कहलाने का दावा कैसे कर सकता है। वो तंजिया अंदाज में कहता है कि ये लक़ब तो नामगुक क्लैन या मुयुंग क्लैन को ज्यादा सूट करता है, टैंग क्लैन को हरगिज नहीं। उसकी बात के साथ ही उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ जाती है। टैंग ये सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है और पूछता है उसने अभी क्या कहा। हुरिम ठंडे लहजे में उसे मुरिम की दुनिया में बेधड़क बेमिसाल जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने से मना करता है। फिर वो उसे ठंडा होने का मशवरा देता है और कहता है कि उसका गुस्सा सिर्फ उसे कमजोर दिखाता है। ये सुनकर टैंग और भी झुंझला जाता है। वो हुरिम की तरफ बढ़ता है, उसे घूरते हुए पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई टैंग क्लैन को कमतर समझने की। उसी वक्त आयून हुजियोंग को मोहतात रहने का कहती है क्योंकि वो दोनों के काफी करीब बैठे थे। अचानक एक प्याला हुरिम की तरफ फेंका जाता है। हुरिम बगैर हिचकिचाहट के उसे हवा में पकड़ लेता है और फौरन तोड़ देता है।
टैंग ये मंजर देखकर कुछ देर के लिए हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि ये प्याला किसने फेंका। उसी लम्हे हुजियोंग पुरसकून लहजे में हाथ उठाकर कहता है कि ये उसकी गलती थी। हुरिम मुस्कुराता है और उसकी बात पर सवाल उठाता है, क्या वाकई ये गलती थी? फिर वो हंसा है और कहता है, तुम काफी दिलचस्प नौजवान हो। फिर पूछता है, तुम किस क्लैन के सक्सेसर हो? अपनी नशिस्त पर पुरसकून बैठे हुजियोंग उससे कहता है, फिलहाल वो उसी से निपटे जिसे उसका सामना है। टैंग गुस्से में बोलता है, वो हुजियोंग है, यियोन क्लैन से। फिर वो वार्निंग देता है कि अगर उसने बेवजह मुदाखलत की तो पहले मरने वाला वही होगा। वो घूरते हुए हुजियोंग के यून क्लैन को बेवकूफ कहता है और पूछता है कि क्या वो खून में लथपथ होने के लिए तैयार है। उसी वक्त हुजियोंग एक प्याला टैंक की तरफ फेंकता है जो सीधा उसकी पेशानी पर लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। हुजियोंग कहता है, वो शोर बहुत मचा रहा था। जब वो खड़ा होता है, हुजियोंग उससे आवाज देता है और मशवरा देता है कि वो मामले को मत बढ़ाए, मगर हुजियोंग कोई जवाब नहीं देता और हुरिम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो उसकी की को महसूस करने की कोशिश करता है और नोट करता है कि ये किसी विलन जैसी तो है, लेकिन पूरे यकीन से नहीं कह सकता। पिछली बार जो उसे महसूस हुआ था वो इस बार से मुख्तलिफ था, इसीलिए वो दोबारा जायजा लेने का फैसला करता है। इसी दौरान हुरिम उसे शक की निगाह से देखकर सोचता है कि क्या वो उसकी की को रीड करने की कोशिश कर रहा है। दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इसी दौरान जिपियोंग अपने भाई की तरफ बढ़ता है। आयुन फौरन उसे रोक लेती है और आगे बढ़ने से मना करती है। जब वो वजह पूछता है तो आयुन तस्लीम करती है कि वो खुद भी पूरी तरह सूरत हाल समझने से कासिर है, लेकिन वो जोर देकर कहती है, जिस शख्स की आंखें ऐसी हो उसे रोका नहीं जा सकता। कुछ देर बाद टैंक को होश आ जाता है। हुमियोंग फौरन पूछता है कि क्या वो ठीक है। टैंक सर पकड़कर उलझन में बुड़बुड़ाता है कि क्या वो बेहोश हो गया था। जैसे ही उसे याद आता है कि वो सिर्फ एक प्याले की वजह से बेहोश हुआ था, वो गुस्से से चीखने लगता है। हुमियोंग उसे काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन टैंक गुस्से में कहता है कि उसे जाने दो। जिल्लत महसूस करते हुए वो ये तस्लीम नहीं कर पाता कि टैंक क्लेन का एक असल रुकन इतनी आसानी से बेहोश कैसे हो गया। मायूसी और गुस्से में आकर वो बदला लेने के इरादे से अपनी की जमा करने लगता है। हुमियोंग खतरा महसूस करके फौरन मुदाखलत की कोशिश करता है। टैंक पीछे से हुजियोंग की तरफ बढ़ता है, गुस्से में मंत्र बड़बड़ाता हुआ अपने कांपते हाथ से एक जोरदार पंच मारने के लिए तैयार होता है। जिपियोंग ये सब देखकर चीखता है और अपने भाई को खबरदार करता है। टैंक गुस्से में अंधा पूरी ताकत के साथ हुजियोंग पर पीछे से हमला कर देता है, मगर बिल्कुल उसी वक्त हमला होने से पहले हुजियोंग तेजी से अपनी जगह से पीछे हट जाता है और टैंक के बाजू को मजबूती से पकड़ लेता है। टैंक खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर उसकी सब कोशिशें नाकाम जाती हैं। हुजियोंग की गिरफ्त जैसे जैसे मजबूत होती है, उसे एहसास होता है कि उसका बाजू तो टूट जाएगा। एक ही झटके में हुजियोंग उसका कंधा डिसलोकेट कर देता है और टैंक दर्द से चीख उठता है। तेज दर्द के असर से टैंक घबरा जाता है और खौफ उसके दिल में बैठ जाता है। तब उसे अपने मुकाबिल की असल ताकत का पता चलता है। कांपते हुए वो अपने ऊपर से काबू खोने लगता है और डर के मारे अपने कपड़े गीले कर देता है। ये देखकर हुजियोंग अपनी तवज्जो दूसरी तरफ कर लेता है और सोचता है कि उसे अपना वक्त इन सब चीजों में जाया करने की बजाय असल मकसद पर ध्यान देना चाहिए, जो अपना असल विलन और दुश्मन पहचानना है। बिला झिझक वो टैंक को एक तरफ उछाल देता है और अपनी तवज्जो हुरिम की तरफ करता है। वो हुरिम को मुयुंग क्लैन का तीसरा यंग मास्टर कहकर पुकारता है। अपना हाथ बढ़ाते हुए वो उसे पूरे एतमादी से डुएल चैलेंज देता है। मजमा हैरत से हुरिम के जवाब का इंतजार कर रहा होता है। हुरिम चंद लम्हों के लिए खामोश रहता है, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आती है। वो हुजियोंग को पहचानता है और उसे ग्रीन माउंटेन युंग क्लैन का सक्सेसर कहकर पुकारता है। बहुत मुतमईन लहजे में वो टैंक को संभालने पर उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वो महफिल खराब कर रहा था। लेकिन वो वाजे करता है कि ये इवेंट सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं है। वो वादा करता है कि बाद में उससे ठीक से सामना करेगा और अभी वो उससे दावत के मजे उठाने का कहता है। हुजियोंग हुरिम के अल्फाजों को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि वो बहुत बोलता है। बगैर किसी जवाब का इंतजार किए वो एकदम आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर हुरिम उसके पास नहीं आएगा तो वो खुद उसके पास चला जाएगा। जब हुजियोंग पुरसुकून अंदाज में हुरिम की तरफ बढ़ता है, हुरिम उसे घूर कर देखता है और उसे हवा में एक अजीब तनाव महसूस होता है। वो सोचता है कि हुजियोंग की रफ्तार तो धीमी है, लेकिन फिर भी उसकी अपनी नसें तनाव का शिकार क्यों हो रही हैं? जब हुजियोंग आखिरकार उसके सामने खड़ा होता है तो हुरिम के माथे पर पसीना आ जाता है। हुरिम फौरन अपनी स्टील चेन टेक्निक से हमला करता है, मगर हुजियोंग फुर्ती से बच जाता है। हुरिम लगातार चेन से वार करता है, लेकिन वो हर बार बड़ी महारत से बच जाता है। तमाशाई ये सब हैरानी से देखते हैं और कहते हैं कि स्टील चेन अटैक वाकई अपनी शोहरत के लायक है, मगर वो ये समझने से कासिर होते हैं कि यून किस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। जिपियोंग भी हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि हुजियोंग यून क्लैन का 13 फिस्ट यूज कर रहा है, जो कि एक बेसिक फर्स्ट मार्शल आर्ट है। हुरिम एक मुक्का मारता है, लेकिन हुजियोंग उसे रोक लेता है और उसके बाजू पर वार करता है।
हुरिम फौरन पीछे हट जाता है ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। मौके का फायदा उठाते हुए हुजियोंग फौरन एक ट्रांसवर्स स्ट्राइक करता है जिससे हुरिम लड़खड़ा जाता है। वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा रहता है और अपने बाजू का मुआयना करता है और वार की शिद्दत को महसूस करता है। उसे अंदाजा होता है अगर वो मुहतात ना होता तो उसकी हड्डी टूट सकती थी। हुजियोंग कहता है अगर हुरिम खेल ही खेल में लड़ाई करना चाहता है तो कम से कम ऐसे वार करे जैसे वाकई किसी को मारने का इरादा रखता हो, तभी वो अपनी असली सलाहियत देख सकेगा। हुरिम उसे जवाब में नोविस कहकर जलील करता है। उसी लम्हे एक कुव्वत उन दोनों को घेर लेती है और उन्हें रुकने का कहती है। हुयून बीच में आकर लड़ाई रोक देता है और गुस्से से पूछता है कि वो सेक्रेट गैदरिंग में ये क्या कर रहे हैं। हुयून हुरिम की तरफ मुड़ते हुए उसे मिस्टर मुयुंग कहकर मुखातिब करता है और याद दिलाता है कि वो सक्सेसर में सबसे बड़ा है। वो मानता है कि हुरिम एक बदतमीज शख्स को सबक देना चाहता था, मगर पूछता है कि क्या वो कोई ज्यादा दूर नहीं चला गया। फिर वो अपनी तवज्जो हुजियोंग की तरफ करता है और उसे एक आवारा लड़के की तरह लड़ाई शुरू करने पर तनकीद करता है और कहता है गैदरिंग की तारीख में कोई इतना बदतमीज नहीं रहा। वो अपनी झुंझुलाहट का इजहार करते हुए हुजियोंग पर घमंडी होने का इल्जाम लगाता है और पूछता है कि वो कब तक नामगुम क्लैन को कमतर समझता रहेगा। इससे पहले वो मजीद कुछ कहता, आयुन की आवाज उसे रोकती है। शदीद गुस्से से वो मुदाखलत करने वाले का पूछती है। जैसे आयुन आगे बढ़ती है वो उसे पहचान लेता है और उसे छोटी आयुन कहकर पुकारता है, मगर वो सख्त लहजे में यंग मास्टर नामगुम हुयून का नाम लेती है और उसे टोकते हुए याद दिलाती है कि ये एक ऑफिशियल मीटिंग है, इसीलिए उसे ध्यान देना चाहिए कि वो उसे किस तरह मुखातिब कर रहा है। हुयून उसके पुरसकून और पुरएतमाद लहजे से हैरान रह जाता है। आयुन बेहोश टैंक की तरफ इशारा करके कहती है कि असल में गैदरिंग को परेशान करने वाला टैंक था। वो पूछती है कि फिर हुयून पूरा इल्जाम यंग मास्टर यून पर क्यों डाल रहा है। हुयून उसका नाम लेता मगर फौरन खुद को दुरुस्त करते हुए उसे लेडी जिगाल कहकर पुकारता है। वो कहता है कि वो खुद इस बात का गवाह है। हुजियोंग ने टैंक को रोकने के बजाय मुयोंग पर हमला कर दिया। आयुन जवाब देती है कि यून ने पहले ही कह दिया था कि वो एक गलती थी। वो कहती है कि मुयोंग जैसा आला मर्तबे के शख्स को खुले दिल से उसे माफ कर देना चाहिए था। फिर वो हुरिम की तरफ देखकर पूछती है कि क्या वो गलत कह रही है, पर वो खामोश रहता है। आयुन कहती है कि जहाँ तक उसे इल्म है ग्रीन माउंटेन यून कोई सीक्रेट वेपन फेंकने की टेक्निक नहीं इस्तेमाल करता। उसके मुताबिक हुजियोंग ने सिर्फ एक कप से टैंक को रोकना चाहा था, लेकिन उसका निशाना चूक गया। आखिर में वो हुजियोंग से कहती है कि इसमें उसकी भी कुछ गलती है और उसे सबके सामने अपनी वजाहत पेश करने का कहती है। दिल ही दिल में वो दुआ करती है कि हुजियोंग कोई जवाब दे दे। जिपियोंग भी उससे कुछ कहने का मुतालबा करता है। अपनी गलती का एहसास करते हुए वो मानता है कि उसने जल्दबाजी में काम लिया। वो सोचता है कि उसे विलन का साया महसूस हुआ था, जिसकी वजह से उसकी कातलाना नियत पर काबू न रहा। हुरिम की तरफ देखकर वो माफी मांगता है और कहता है कि मुयुंग क्लैन का मार्शल आर्ट वाकई उतना ही ताकतवर है जितना सुना था। वो वजाहत करता है कि उसका मकसद सिर्फ कुछ सीखना था और वो माफी चाहता है। हुरिम कहता है कि वो बात समझ गया। हुजियोंग मानता है कि उसने माहौल बिगाड़ दिया और कहता है कि उसके वालिद हमेशा कहते हैं कि हर अमल से पहले सोचा करो। वो कहता है कि शायद वो ये सबक फिर भूल गया और उसे डर लगता है कि अगर उसके वालिद को पता चला तो उसे 3 दिन तक भूखा रखा जाएगा। उसका अंदाज देखकर आयुन मुश्किल से हंसी रोकती है। हुजियोंग कहता है कि उसे उम्मीद है कि यहाँ कोई भी उसके वालिद को नहीं जानता। फिर वो कहता है कि बतौर माफी कल वो बैंक्वेट में सबको अपने हाथों से एक शराब पेश करेगा। आखिर में वो ख्वाहिश करता है कि सब उसकी बदतमीजी को दरगुजर कर देंगे। हुजियोंग की बात सुनकर पेंग डेह्यू जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि यह सब बकवास है। हुजियोंग के सामने खड़े होकर वो अपने जिस्म पर हाथ मारकर कहता है कि उस जैसे जिस्म के लिए 1 कप शराब काफी नहीं है। वो तजवीज पेश करता है कि सब तब तक पिएं जब तक के मदहोश न हो जाएं। अगर यंग मास्टर यून सबसे आखिर तक संभल गया तो वो उसे माफ कर देगा। ये सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है और आवाजें बुलंद होती हैं। हुजियोंग जब कोई रास्ता नहीं देखता तो मुस्कुराकर जवाब देता है ये उसे कबूल करना ही होगा। लोग पुरजोश होकर बातें करते हुए बिखर जाते हैं। कई लोग यंग मास्टर यून की जुर्रत पर हैरान होते हैं और कल की दावत का इंतजार करते हैं। लोग लेडी जेगाल का भी जिक्र करते हैं कि वो तमाम सूरत हाल में कितनी पुरसकून और बावकार थी। सबके जाने के बाद भी हुयून गुस्से में वहाँ खड़ा रहता है और खुद को तसल्ली देता है कि उसके पास अभी भी वक्त है। इसी दौरान पेंग मेनू हुमियोंग के पास आता है और पूछता है कि क्या वो पॉइजन ड्रैगन स्टील विप का हुमियोंग है। हुमियोंग ये पहचान पाकर फख्र महसूस करता हुआ अपने शनाख्त की तस्दीक करता है। मनहू कहता है कि आज उसे कई जबरदस्त लोगों से मिलने का मौका मिला। वो टैंक को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन गैदरिंग प्लेस रेस्टोरेंट में बैठे हुजियोंग के पास एक आदमी आता है। वो अपना तारुफ करवाता है। वो चूजियोंग की सिक्योरिटी का गार्ड कैप्टन है।
बिना वक्त जाया किए वो कहता है कि बैंक्वेट शुरू होने से पहले हुजियोंग को यह जगह छोड़कर जाना पड़ेगी। ये सुनकर जिपियोंग फौरन उठता है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ होता है और वो उससे इस बात की वजाहत मांगता है। गार्ड अपने मौकफ पर कायम रहते हुए कहता है उन्हें दोपहर बैंक्वेट शुरू होने से पहले मैनर खाली करना होगा। हुयून चुपचाप बैठा अपनी ड्रिंक के मजे लेता इस सूरत हाल से लुत्फअंदोज हो रहा होता है। हुजियोंग अपनी चॉपस्टिक नीचे रखते हुए पूछता है कि क्या उसे बाहर जाने का कहा गया है। चूजियोंग सर हिला के हाँ की तस्दीक करता है। हुजियोंग इसकी वजह पूछता है, जिस पर चूजियोंग जवाब देता है उसने गैदरिंग ऑफ सक्सेसर में खलल डाला है, उसका माजी भी मशकूक है, इसीलिए उसने फैसला किया है हुजियोंग गैदरिंग के मुकाबले में हिस्सा लेने के काबिल नहीं है। जिपियोंग ये सुनकर गुस्से में बुलंद आवाज से बोलता है कि ये मामला तो कल ही तय पा चुका था। वो इस बात पे अड़ा रहता है कि हुजियोंग को दोबारा सजा नहीं मिल सकती क्योंकि उसने बैंक्वेट के दौरान माफी मांगने का फैसला भी किया था। चूजियोंग बगैर मुतासिर हुए उसकी माफी मांगने की सच्चाई पर सवाल उठाता है। गुस्से से हुजियोंग की तरफ इशारा करते हुए वो कहता है कि उसके रवैये से तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि उसने आके फौरन आराम से खाना शुरू कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर वो हुजियोंग को जल्दी से वहाँ से निकल जाने को कहता है। जिपियोंग चिल्ला कर कहता है कि वो एक क्लैन का सिर्फ गार्ड है, कोई भी क्लैन गैदरिंग ऑफ सक्सेसर के काबिल है या नहीं वो इस बात का फैसला नहीं कर सकता। चूजियोंग बगैर घबराए उसे जाहिल कहता है। जब जिपियोंग इस बात की वजाहत मांगता है तो वो कहता है कि नामगुक क्लैन इस गैदरिंग का मेजबान है और उन्हें यह हक हासिल है कि वो किसी भी मुसीबत पैदा करने वाले शख्स को बाहर निकाल सकते हैं। वो मजीद कहता है कि अगरचे सेकंड यंग मास्टर ने बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए कल ये मामला खत्म कर दिया था, मगर वो इतना नरम दिल नहीं है। वो साफ कह देता है कि वो मसला पैदा करने वालों को यहाँ नहीं रहने देगा और उन्हें खबरदार करता है कि वो खुद को शर्मिंदा किए बिना यहाँ से चले जाएं। हुयून चुपचाप अपनी चाय का घूंट लेता है और उन लम्हों के मजे ले रहा होता है। इसी दौरान हुजियोंग जिपियोंग को बुलाता है और एक गोश्त का टुकड़ा लेकर उसके मुंह में डाल देता है और उसे खाना खाने का कहता है इससे पहले कि ठंडा हो जाए, और ये भी कहता है कि एक कुत्ते के भौंकने पर खाना छोड़ देना बेकार की बात होगी। ये सुनकर चूजियोंग को सख्त गुस्सा आता है। माहौल में कशीदगी के बावजूद हुजियोंग फिर से जिपियोंग से मुखातिब होता है और उससे ना खाने की वजह पूछता है और उससे पूछता है कि वो खाना दोबारा गर्म करवा देगा। चूजियोंग मजीद झुंझला कर पूछता है कि उसने भी क्या बोला, लेकिन हुजियोंग उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देता है। गुस्से से जमीन पर मारते हुए चूजियोंग फिर जोर से वही सवाल दोहराता है। हुजियोंग बगैर घबराए कहता है कि यह शख्स बहुत जोर से भौंक रहा है, लगता है भूखा है और इसके मालिक को इसे ले जाना चाहिए। ये बात चूजियोंग को मजीद गुस्सा दिलाती है और वो फौरन से अपनी तलवार निकाल लेता है और हुजियोंग से कहता है कि उसके सामने सिर्फ एक बच्चा है। उसी लम्हे हुयून आगे आकर चूजियोंग की तलवार को उसकी नयाम में रखता है और पुरसुकून लहजे में उसको खुद पर काबू रखने का कहता है। हुयून को देखकर हुजियोंग तंजिया अंदाज में कहता है, कुत्ते का मालिक भी आ गया। करीब ही बैठा बैगर ड्यूक्सन खाना और हंगामा खेजी दोनों के मजे ले रहा होता है। बेतकल्लुफ अंदाज में खाते हुए वो कहता है कि गैदरिंग तो बड़ी हंगामा खेज है, लेकिन उसे ये पसंद है क्योंकि बिना किसी की तवज्जो उस पे आए वो सुकून से खाना खा सकता है। हुजियोंग को देखकर वो पहचान लेता है कि ग्रीन माउंटेन यून क्लैन का यंग मास्टर है जिसने माबंग को हराया था। दिलचस्पी से वो सोचता है देखते हैं हुजियोंग इस मुश्किल सूरत हाल को कैसे संभालेगा। हुयून हुजियोंग से मुखातिब होकर कहता है कि नामगुक क्लैन के गार्ड कैप्टन को सबके सामने रुस्वा करना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे उसका क्लैन नजरअंदाज करेगा, लेकिन हुजियोंग जवाब देता है असल बेइज्जती तो वो थी जो उसके साथ हुई। हैरान होकर हुयून उससे सवाल करता है कि वो क्या कह रहा है, जिस पर हुजियोंग खड़ा होकर कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे मसला था तो खुद सामने आते, लेकिन उसका सामना करने के बजाय उसने एक ओल्ड गार्ड कैप्टन को इस मसले से निपटने के लिए भेज दिया। फिर वो पूछता है कि क्या वो वाकई में उससे इतना डरता है। हुयून इस बात पर हंसता है और कहता है कि वो उससे क्यों डरेगा। हुजियोंग उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है अगर हुयून को अपनी छोटी बहन की वजह से कोई रंजिश थी तो वो रियल वॉरियर की तरह लड़ाई के लिए ललकारता, ना कि अपने मातहत के जरिए पीठ पीछे साजिश करता। ये सुनते ही मजलिस में कयास आराइयां शुरू हो जाती हैं और सब बात को समझने लगते हैं। हुयून चौंक जाता है और सोचता है कि क्या हुजियोंग ने वाकई नामगुक सांगवा का जिक्र किया है। परेशानी में वो बुलंद आवाज में सबको खामोश करवाता है और सबको बेबुनियाद बातें करने से मना करता है। वो जोर देकर कहता है कि बतौर नामगुक हुयून उसने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया और ऐसी बात कहना भी नामगुक क्लैन की तौहीन है। ये सुनकर हुजियोंग कहता है कि अगर वाकई उसने हुक्म नहीं दिया तो फिर उसे एतराज नहीं होना चाहिए अगर वो इस गार्ड को सबक सिखा दे जिसने अपनी मर्जी से दूसरे क्लैन की बेइज्जती की। हुयून दांत भींचकर खामोश हो जाता है और उसे एहसास होता है कि हुजियोंग ने उसे मुश्किल में डाल दिया है। अपने लफ्जों से इनकार करने का अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसा करने पर वो अपनी हैसियत खो देगा। हुजियोंग सुकून से कहता है कि वो इसे सबक सिखा दे या हुयून यंग मास्टर इसे सबक सिखाएगा।
इससे पहले हुयूंग कुछ कहता, चुजियोंग आगे बढ़कर कहता है कि वो अपने हर अमल की जिम्मेदारी खुद लेता है, उसने जो भी किया सब उसका अपना फैसला था। ये सुनकर हुजियोंग सर हिलाकर कहता है कि फिर एक सादा सा स्पेयर हो जाए जिसमें चुजियोंग अपनी गलती का खुमियाजा भुगतेगा। हुजियोंग मजीद कहता है कि जब वो उसे दर्दनाक सबक दे चुका होगा तब सक्सेसर के दरमियान स्पेयर हो सकती है जो माहौल को बेहतर बनाएगी और उनके दरमियान दोस्ती को मजीद मजबूत करेगी। चुजियोंग बिना किसी हिचकिचाहट के मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। हुजियोंग उसे खबरदार करता है कि बाद में वो मुकर नहीं सकता, कोई बहाना नहीं चलेगा। बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान हुरिम सारा मंजर दिलचस्पी से देख रहा होता है और उसके मजे ले रहा होता है। इसी दौरान जिपियोंग आह्यून के पास जाता है और उसे पूरी सूरत हाल बताता है। आह्यून बात सुनते ही समझ जाती है कि मामला कितना संगीन है और उसके जहन में सोचें तेजी से घूमने लगती हैं। वो सोचती है कि क्या ये वाकई वो लाइटनिंग नाइट चुजियोंग है। उसे उसकी शोहरत याद आती है, एक जबरदस्त जंगजू जिसके बारे में मशहूर है कि उसने हैनान और अनहोई के 30% डाकुओं को अकेले हराया था। उसके दिल में बेचैनी सी उठती है। परेशान होकर वो जिपियोंग से पूछती है कि उसने हुजियोंग को रोका क्यों नहीं, जब उसे पता था कि चुजियोंग कितना खतरनाक है। जिपियोंग आ भर कर कहता है कि उसने कोशिश की थी, लेकिन हुजियोंग ऐसा शख्स नहीं जो किसी के कहने से रुक जाए, और कहता है कि अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं। ये सिर्फ उसके भाई की इज्जत नहीं, पूरे खानदान की इज्जत का मामला बन चुका है। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगाते हुए आह्यून बेख्तियार कहती है, हम यहाँ सिर्फ बैठे नहीं रह सकते। जल्दी से वो ऐलान करती है कि उन्हें फौरन ट्रेनिंग ग्राउंड जाना होगा और ये मुकाबला देखना होगा। जैसे ही वो पलटती है तो देखती है कि उसका छोटा भाई उसका ओपरी लिबास हाथ में लिए खड़ा है, जैसे वो पहले से ही तैयार हो। वो उसे शुक्रगुजार नजरों से देखती है, उसका शुक्रिया अदा करती है और वहाँ मिलते हैं कहकर वो तेजी से निकल जाती है। आह्यून के जाने के बाद जिपियोंग और उसका भाई एक साथ बैठे सूरत हाल पर बात करके थोड़ी तसल्ली महसूस करते हैं। इसी दौरान मैदान में चुजियोंग और हुजियोंग आमने सामने खड़े लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। चुजियोंग हुजियोंग की तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो तैयार है। हुजियोंग अपनी स्टील चेन टेक्निक फ्लेक्स करते हुए उसे शुरू करने का कहता है, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले चुजियोंग कहता है कि वो हुजियोंग को पहले 3 वार करने देगा। हुजियोंग हैरत से इस बात पर सवाल करता है। चुजियोंग तस्दीक करता है और वजाहत देता है, चूँकि हुजियोंग नामगुक क्लैन के वॉरिंग स्वॉर्ड स्क्वाड के लीडर को जिम्मेदार ठहरा रहा था, तो उसे 3 फ्री स्ट्राइक्स देना बिल्कुल मुनासिब है। हुजियोंग अपना स्पीयर उठाता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है।